Good morning to everyone present here. We are delighted to introduce our esteemed guest for today, architect and author Anaga Sadavarte ma'am. A graduate of University of Pune, architect Sadavarte began her journey in education through electrical engineering before transitioning to architecture. She's serving as chief architect at Creative Ventures Pune since 2014 and is also the director of a business consultancy firm, Anaris. With over 20 years of experience spanning commercial, industrial, residential, and interior projects, her accolades include the Rashtriya Gaurav Award by National Human Welfare Council in 2019 and nominations for the Rashtriya Nirman Award and NDTV Design Award. Additionally, she authored Decode Success, a practical guide to achievement. As part of the Pulse lecture series conducted by our college, she will provide insights on new age plumbing for effortless luxury in modern baths. We are pleased to welcome you, ma'am, and look forward to an enlightening session. So you see the title. What comes to your mind after you read the title? See, basically, today's session is more about talking about the luxury baths. आप लोग हिंदी में comfortable हैं, English में comfortable है या mixed language में comfortable है? सबसे पहले मुझे बताओ. Mix? Okay. तो अभी मुझे बताइए कि आपके दिमाग में क्या आता है जब ये टाइटल देखते हैं luxury baths. Now you guys are already done with your plumbing studies in third year, right? सबका हो चुका है? नहीं? किसका हो चुका है? fourth year कौन कौन है? आप लोग का हो चुका है. थर्ड ईयर इट्स इन प्रोसेस, चल रहा है अभी. तो the picture that we see is a Moroccan spa. Everyone must have seen such kind of slides या images देखे होंगे आप लोगों ने अपने अपने assignment करते हुए. And you must have visited Mandu, which is one of the closest place where you could have, come across things like the Mughal type period spa या जो bathing area हुआ करता था रानियों के लिए. आपने देखा होगा. Most of you must have seen. देखा है या नहीं देखा है? देखा है. Okay. So what is so special about the bathroom that it becomes the topic of lecture? Is it big enough or is it really small? क्या लगता है आपको? Important है? डिजाइन जितना important तो नहीं है ना. सबसे ज्यादा important तो डिजाइन होता है. Yes या no? Important है नहीं है? क्यों है? क्यों important है? Okay, how many of you get pocket money from your parents? Almost all of you. ठीक है. एक घर बनाने के लिए जो खर्चा लगता है, पूरा घर बनाने के लिए जो खर्चा लगता है, जितना एक्सपेंडिचर होता है, if that is coming to X rupees per square feet, the cost of a toilet is 3x. For example, अगर एक घर 2000 रुपए स्क्वायर फीट से बन रहा है, तो बाथरूम किसी भी हालत में 6000 रुपए स्क्वायर फीट से कम में नहीं बनेगा. That means a 5x8 bathroom, that is a 40 square feet bathroom. कोई मुझे मैथमेटिक्स करके बताओ. 40 square feet multiplied by 6000. 2.5 लाख या 2.5 लाख. सो एक बाथरूम जो इतना छोटा एरिया होता है, उसके लिए such a big amount is spent, equivalent to your 2 years of fees, I suppose, or 1 year of fees. वो एक बाथरूम में खर्चा हो जाता है. Now, do you feel responsible enough to know it so accurately because you're going to play with somebody else's money when you will be in field, right? आप में से कितने लोग मार्केट स्टडी के लिए गए हैं? प्लम्बिंग रिलेटेड कोई गया है मार्केट में? कुछ देखे हैं प्रोडक्ट की कॉस्टिंग? कुछ प्रोडक्ट देखे हैं आप लोगों ने? सिलेबस में है इसलिए गया है. कोई आइडिया है वॉश बेसिन का टैप का कॉस्ट क्या होता है? स्टार्टिंग फ्रॉम few hundreds, reaching to few thousands, going up to 50-60,000 one single tap.
कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू सिलेक्ट, एंड दैट इज व्हाई द लग्जरी, द नीश, द हायर एंड ऑफ प्लम्बिंग सीपी सैनिटरी नीड्स गुड नॉलेज. ओके. Second is the history of architecture. So everybody has learned about Roman period and the stink in the UK and what happened when there were no drainages. किसी ने स्टोरी सुनी है क्या रिवर थेम्स की? लंदन में थेम्स रिवर है, लंदन में, पता है? ओके. जब इन द बिगिनिंग व्हेन द बेसिक सैनिटेशन वाज अंडर, मतलब इवॉल्व हो रहा था, उस समय एंटायर डेफिकेशन वाज अनफिल्टर्डली पुट इनटू थेम्स. मोस्टली सारे सिटीज में, सारे बड़े कंट्रीज में यही हुआ करता था उस पीरियड में. सो द एंटायर वाटर यूज्ड टू गेट कॉन्टेमिनेटेड, वाटर बेस्ड डिसीजेस हो जाते थे, एंड उससे कॉलरा और अलग अलग तरह के बहुत सारे डिसीजेस शुरू हो गए थे. उसके बाद में पीपल स्टॉप गोइंग टू द रिवर्स. द स्टिंक वाज सो बैड दैट हुएवर यूज्ड टू स्टे इन अदर रिवर, वो लोग घर छोड़ छोड़ के प्रॉपर्टी बेच के दूसरी तरफ निकलना शुरू हो गए, टिल दे रियलाइज दैट देयर हैज टू बी अ फिल्ट्रेशन सिस्टम एंड सो एंड सो. इट्स अ बिग टॉपिक इन इटसेल्फ, मे बी सम अदर डे वी विल कवर इट. So coming from Roman toilets which were that way to another toilet that is one piece of furniture kind of a thing with a pot in between, it's the Persian toilet from the year 1764. उस टाइम पे ऑलरेडी इतना दिमाग आ गया था लोगों को कि इस तरीके की चीजें बना लें, और वी आर इन 2024, वी बेटर डू अ गुड जॉब, राइट? ऐसा कुछ बनता है. हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉन टू बाथरूम्स व्हिच लुक the basin area which look like this? जा चुके हैं ना सब लोग, कहीं ना कहीं वेकेशन पे जाते हो, होटल्स में जाते हो, ऐसे ही दिखता है ना, राइट? सो आर यू रेडी टू क्रिएट समथिंग लाइक दिस? हो चुका है उतना, फोर्थ ईयर विल बी एबल टू डिजाइन ना समथिंग लाइक दिस, राइट? सो व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन समथिंग लाइक दिस? ऐसा डिजाइन करने के लिए किस चीज की जरूरत है? मार्क्स, सो प्लीज टॉक. प्लीज बात कीजिए मुझसे, बिकॉज दिस इज व्हाट आई वांट इट टू बी मोर इंटरैक्टिव. व्हाट इज इट रिक्वायर्ड टू मेक बाथरूम्स लाइक दिस? टाइटल है इसलिए उसके बारे में बात मत करो, दूसरी भी बातें करो. हाँ, जब आप देखते हो, आपको इस पिक्चर में क्या क्या ऑब्जर्व करते हो इस पिक्चर के बारे में आप? ओके, and few answers from this corner also, and from that corner also, and from that corner also. सबसे participation है. Somebody from here, this picture में. Ambience, what else? What else? दिखता है. जो observation है, उसको देख के अगर एक आपको मीटर का जगह दे दें, you can create something like this, right? How many can create exactly replica? कौन कौन बना सकता है? Okay. Now, if I don't tell you the sizes जिसके जितने होने चाहिए, तो क्या होगा? What do you see on the right and what do you see on the left? What do you see on the right and what do you see on the left? ये होता है. कब होता है? नॉलेज वर्सेस लैक ऑफ नॉलेज. नॉलेज वर्सेस लैक ऑफ नॉलेज के केस में ये होता है. और ऐसे मीम्स आप लोगों ने बहुत देखे होंगे, राइट? कुछ मेरे साथ भी शेयर कर देना अगली बार कुछ मिलेंगे तो. नेक्स्ट, ऐसा भी होता है. The best is the left one. Why? टॉयलेट का साइज आप लोग, अच्छा, यू आर इन थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, दैट मीन्स आपका फर्स्ट ईयर के बाद में बंगलो डिजाइन हो चुका है, सेकेंड ईयर के बाद में इंस्टीट्यूट डिजाइन हो चुका है, या तो होटल्स या रिजॉर्ट्स डिजाइन हो चुके हैं,
एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डिजाइन हो चुका है, 4th ईयर वालों का हाउसिंग पे हो, राइट। टॉयलेट का करेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है व्हेन यू प्लान अ टॉयलेट? व्हाट इज द करेक्ट प्रोपोर्शन फॉर अ टॉयलेट टू बी इन प्लान? आई एम सेइंग क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए? अपने लिए एक छोटा सा नोट बनाइए, स्टडी गुड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, 2 or 3 of them, study the toilet size in plan, 2 or 3 different sizes, उसका रेशियो निकालिए और अपने पास रखिए। फॉर द लाइफ टाइम आपको टॉयलेट का स्पेस अच्छे से डिजाइन करते आएगा। मैं बता दूंगी, मतलब नहीं है, आप लोग भूल जाओ। जब आप ढूंढोगे आप याद रखोगे, मैं बता दूंगी, भूल जाओ। एंड आई नो इफ आई वॉज इन योर प्लेस अटेंडिंग अ लेक्चर और किसी ने बताया होता, ओनली केस मैंने नोट किया होता तो मुझे थोड़ी देर याद रहता, पर अगर मैं खुद ढूंढूंगी तो मुझे ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। एक टॉयलेट में या एक बाथरूम में divided things to be known in 2 zones. Things those are visible and things those are hidden. List आपको दिख रहा है, आंखों से दिखती है, right? We see a wash basin, we see a WC, we see a faucet, we see फ्लोर के टाइल दिखते हैं, काउंटर दिखता है, डोर विंडो दिखते हैं, लाइटिंग दिखता है, ये दिखता है। कुछ और जो मैंने मिस आउट किया है इसमें, राइट, नेक्स्ट, एनीथिंग मोर? एक्सेसरीज जो मिस आउट हुए हैं, लाइक अ टिश्यू पेपर होल्डर, अ टॉवल रॉड, अ नैपकिन होल्डर, अ सोप डिश and multiple things like that. Now why am I pointing out to those things also? इन चीजों के सेट्स भी 6-7 हजार से लेके 70-80 हजार के कॉस्टिंग में जाते हैं। बाथरूम्स की कॉस्ट भी इतना वेरिएशन है। जब इतना वेरिएशन है और सामने वाला बंदा आपकी जिम्मेदारी पे पैसा खर्चा कर रहा है, is it not our moral responsibility to put them in the right height, in the right locations? It is, right? तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, if you start noting these down for yourself, you will create wonderful things in future. I'm very sure you will. Okay? Another hidden things are like what are not seen are the plumbing, piping. There are multiple things in a drainage, traps, drain trees, water supplies, the cold and hot, and then pressure, electrical supplies, and then there are more things to it. Like अगर water का pressure कम है तो pressure pumps होते हैं. If there are bathrooms which have steam and sauna, उसमें steam machines होते हैं, उनका plumbing अलग चलता है, उसमें inlet, outlet, steam overflow, ऐसे बहुत सारी चीजें लेनी पड़ती है. Let us see how much time we get today and how much we are able to cover today. Otherwise, Ratima ma'am से बात करके we can have a continued thing. अगर आज कितना cover होता है उसके ऊपर depending, right? So let us start with the visible. Okay? Let us dive deep into the visible. Are you ready? या कुछ और पूछना है, बात करना है, या आगे बढ़ें? No, I would encourage questions. I would encourage if you have something to say. I'd be more than happy if you guys are talking. मुझे अच्छा लगेगा. Okay? So ये 3 basic zones हैं जो हम आगे, जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूं मैं आपके साथ में. Now I would like to ask you, how many of you know the size of the pot? WC का साइज कितने लोगों को, मतलब सबने ब्लॉक उठा के कैड में डाला है? साइज किसी को पता है? टेंटेटिवली कितना होता है? हाँ, लिटिल लार्जर देन एक्चुअल, बट थोड़ा इससे कम होता है. और एनी अदर गैसेस? दिस इज बिग. Google search somebody and reply. Okay, let us go ahead. हमने प्लान में एक टॉयलेट का लेआउट कर लिया, ठीक है. शावर जोन है, you have placed the WC, you have placed the wash basin, and you are now कि अभी मैंने बहुत सोचा है, इसमें वो पिक्चर में देखा था, वो राउंड वाला मिरर मैं दूंगा, वो स्टोन फिनिश वाला बेसिन दूंगा, and I will do this.
तो अभी सब सब रेडी है दिमाग में, क्या करना है दिमाग में रेडी है अभी, पर अभी ये 2D में है, 3D दिमाग में बन चुका है। अभी मुझे बताओ कि पहले प्लम्बिंग करेंगे या पहले सिलेक्शन करेंगे? सिलेक्शन पहले करेंगे। कितने लोग प्लम्बिंग है, कितने लोग सिलेक्शन? सिलेक्शन वाले हाथ उठा। रियली? प्लम्बिंग वाले हाथ उठा। कुछ कुछ लोगों ने हाथ ही नहीं उठाया, ऐसे अलाउड नहीं है। एक पार्टी चूज करनी पड़ेगी, नोटा नहीं है यहाँ पे, नन ऑफ द अबाव अलाउड नहीं है, एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, अगेन सिलेक्शन वाले हाथ उठाओ। ओके, प्लम्बिंग वाले, बाकी के प्लम्बिंग वाले, सो इट्स एज गुड एज 50-50%। क्या लगता है? अच्छा, जिन्होंने बोला प्लम्बिंग पहले करना चाहिए, तो बिकॉज द लेआउट इज डन, तो प्लम्बिंग वाले पहले बात करेंगे। चलो, प्लम्बिंग वालों में से कोई कोई बात करना शुरू करो। सॉइल पाइप्स हैं, फिर वाटर पाइप वो पहले लगाने पड़ेंगे, तो कनेक्ट होंगे बेसिन स्टार्स और ओके, अपना रीजन दे। सिलेक्शन किन्होंने बोला, उनमें से कोई बात करे। ओके, इट्स ओके, दो बात कर लो दो जोर से, नो प्रॉब्लम। अगर हमने पहले प्लम्बिंग कर दी और सिलेक्शन में चीज ही अलग लेके आए, तो उस प्लम्बिंग का क्या यूज होगा? ये सिर्फ लेआउट लेवल है। लेआउट के समय हमें ये नहीं पता कि हम WC कौन सा वाला लगाने वाले, बेसिन कौन सा वाला लगाने वाले, शावर कौन से कैटेगरी का लगाने वाले, और हमने पहले प्लम्बिंग कर दी और चीज अलग आ गई, तो आपको प्लम्बिंग में रीवर्क होगा। ओके, एनीबडी कैन मेक अ वाइल्ड गेस? किसी भी बिल्डिंग में, बी इट रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, व्हाटएवर, व्हाट इज द स्टेज व्हेन द प्लम्बिंग इज डन? क्या क्या होने के बाद प्लम्बिंग की जाती है? ऑफ कोर्स ब्रिकवर्क के बिना इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं होगा। जहां वुडन स्ट्रक्चर्स होते हैं वहां वुडन फ्रेम छोड़ के नहीं होगा। पर प्लम्बिंग कब की जाती है? ब्रिकवर्क के बाद प्लम्बिंग कर दें, है ना? प्लम्बिंग दिखती है क्या? नहीं दिखती। तो कब होती है प्लम्बिंग? जस्ट बिकॉज मैंने ब्रिकवर्क बोला उसको हाँ बोल दिया। लॉजिक दो, लॉजिक। प्लास्टर इज डन, the plaster is chiseled to do the plumbing for the walls. In case of the drainage lines that go through the, and in some cases the plumbing lines that go through the floor, chemical waterproofing होने के बाद, और अगर brickbat कोबा waterproofing करनी है उसके भी बाद plumbing की जाती है। So why is the plaster chiseled to do the plumbing pipes? Because the brick wall is the main strengthening support structure and we do not want to damage the main structure, and for that reason electrical और plumbing हमेशा plaster chisel करके की जाती है। ओके, बिकॉज जब आप डिग्री लेके बाहर निकलोगे, आपने अगर ब्रिकवर्क के बाद में बोल दिया प्लम्बिंग चालू करो और इलेक्ट्रिकल चालू करो, वो कॉन्ट्रैक्टर आपके मुंह पे बोलेगा कुछ नहीं, मन ही मन हंसने लगेगा। So you should know when what happens. So just remember, एक बेसिक प्लास्टर का कोट होने के बाद में ये दोनों सर्विसेज की जाती हैं। ओके, नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस, पता है सबको? 1 piece, 2 piece, S trap, P trap, ये सुन के सबको पता है, राइट? यस और नो? हाँ, next, these are the some minimum dimensions that you should remember, that you should not give the center of the WC closer than this. मैंने दे दिया जनरल, आप देख लो, आपके पास होगा ऑलरेडी। These are some standard things, इससे ज्यादा नजदीक सेंटर मत लेके जाना। नेक्स्ट, okay, we'll halt here. Now I want to listen from all of you, what do you know about these 3 things? P trap मतलब क्या होता है, S trap मतलब क्या होता है, और S trap P trap को छोड़ के वॉल हंग में ऐसा क्या अलग होता है?
फोर्थ ईयर, ये टाइप्स होते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसमें ये शेप आता है, ये डायग्राम है, पेपर लिख दिया, पास हो गए। उसके आगे उसमें पता करने जैसा क्या क्या जरूरत है? वो प्लम्बर जोड़ता है, हमको क्या करना है उससे? जरूरत है पता करने की? नहीं है। सबसे पहले तो जरूरत है पता करने की या नहीं है? है या नहीं है? मतलब नहीं है, क्योंकि है जवाब तो नहीं आ रहा है। आगे बढ़े, मतलब ये आ गया आपको। आगे बढ़े नहीं, क्या पता करना है? व्हाट डू यू वांट टू नो अबाउट दिस फ्रॉम मी? थोड़ा जोर से, बाहर भी बहुत आवाज आने लगी है। Ma'am, what are the pros and cons of using P-trap? First, tell me Yes, what ma'am. is a P-trap. Pros and cons I'll come to later on. बहुत इजी वाला तरीका बता देती हूँ। एस ट्रैप वो है जिसमें एस शेप क्रिएट होता है। पी ट्रैप वो है जिसमें पी शेप क्रिएट होता है। ये याद रखने के लिए सबसे पहले, पी ट्रैप में आपका जो डेफिकेशन या आउटपुट है वो वॉल में से फ्लोर में जाता है, वॉल में से फ्लोर में जाता है। एस के केस में डायरेक्टली फ्लोर में जाता है। सो एस ट्रैप कैन नॉट बी वॉल हंग एवर, इट हैज टू बी द फ्लोर माउंटेड वन। अब शेप से याद आया, एस कहां पे बन रहा है, पी कहां पे बन रहा है? पी ट्रैप में दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। यू कैन हैव अ फ्लोर माउंटेड WC और यू कैन हैव अ वॉल हंग WC, both is possible. In case of S, only a floor mounted WC is possible. Now you ask the questions. You wanted to know Pros and cons. pros and cons of which one? P-trap. P trap. P trap के केस में pros and cons is that your floor remains clear, is the positive side of it. You can have seamless cleaning that happens on day-to-day basis. Hygiene level better maintain होता है. Aesthetics में options ज़्यादा available हैं. And in case of PT slabs, in case of where we are not giving sunks, S trap is not possible. In that case, P traps ज़्यादा use होते हैं. There are types of ड्रेनेज सिस्टम, आपने गैब्रेट या कुछ सुना होगा कंपनी का नाम, इनके अलग तरीके के पैक्स के पाइप्स होते हैं जिसके थ्रू ये एफ्लुएंट पूरा बाहर जाता है। इसके केस में जब हम पूरा ड्रेनेज बाहर लेके जाते हैं, जब बाथरूम से बाहर ड्रेनेज जाता है, देयर आर टू वेज टू टेक द पाइप आउट। एक केस में आपको कोर कट करना पड़ता है, एक केस में आप ब्रिक को पंचर करके जाते हो। दैट डिपेंड्स व्हाट इज द सेक्शन। ये बहुत डिटेल में है, अभी बोल के नहीं समझ में आएगा, मुझे डायग्राम के साथ समझाना पड़ेगा आपको। सो फॉर नाउ the pros are that you get a seamless flooring, the hygiene level is maintained better, you have more market options available, better flushing systems are available for P traps, which are less in case of S trap, and more modern technology compatibility P में ज्यादा आ रही है S के कंपैरिजन में। S की अगर pros गिने तो उसमें चोकिंग की या इसकी प्रॉब्लम बहुत कम होती है, बिकॉज द डेफिकेशन जस्ट इज फ्लश्ड आउट वेरी इजीली आउट ऑफ इट, बिकॉज इट्स स्ट्रेट गोइंग एंड जॉइनिंग ऑन द फ्लोर। तो मेंटेनेंस के हिसाब से जहां फुटफॉल ज्यादा है उसके हिसाब से एस ट्रैप्स वर्क्स बेटर, वेयर द यूसेज इज वेरी हाई, उसके केस में बेटर होता है। इकोनॉमिकली वायबल ज्यादा है, मोस्टली इन पब्लिक स्पेसेस एंड गवर्नमेंट स्पेसेस जहाँ पे the drainages are, the footfall is very high, they prefer the S trap. Thank you so much. Yeah. Choosing the WC, what all you should consider is one part. What you ask, pros and cons, ये चीजें consider करनी चाहिए while choosing a WC. ये सारी चीजें consider करनी चाहिए। किसी को आइडिया है कि WC का कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट भी लाइक हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, हमको क्या करना है कीमत पता करके? अभी तो हम पेपर लिख रहे हैं, अभी हम एग्जाम दे रहे हैं। हाउ फार 1 ईयर? 4th ईयर वाले
1 year, थर्ड ईयर वाले 1.5 year, नहीं कितना 1.5 साल 2 साल, तुम लोग को 1 साल, उनको 2 साल। चाचा मामा अंकल बोलेंगे बेटा ये प्लॉट है, अभी घर बनाना है, एस्टिमेट निकालो, पसीने छूटने वाले हैं, बता रही हूँ। Is something even we learn day to day. Even we go to the market and study the new products on every monthly basis. हमारा एजुकेशन का टाइप ही वो है कि आपको टाइम टू टाइम खुद को अपडेट करना पड़ता है। एक बार जो सीख के हो गया उस पे बैठ के नहीं चलता। आप लोग कितने नए सॉफ्टवेयर्स यूज करते हो जो हमने कभी यूज भी नहीं किए हैं? हाउ मेनी ऑफ यू यूज द राइनो और समथिंग लाइक दैट? करते होंगे ना कोई तो यूज। आई कांट यूज राइनो, you can, it's wonderful. So you should know more than us from the market now. You are the future of the country, for the world. दुनिया का फ्यूचर हो आप लोग। अगर आप दुनिया का फ्यूचर तो दुनिया को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए ज्यादा अच्छी चीजें ढूंढो, ज्यादा अच्छी चीजें समझो। अभी घर में सिखाते हो ना दादी नानी को मोबाइल्स, आप ही सिखाते हो, कहाँ आता है उन लोग को? नहीं आता ना। कितनी सारी चीजें आप अपने घर के लोगों को, बड़े लोगों को सिखाते हो कि ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं। फोन, टैब्स, लैपटॉप सिखाते हो ना ओल्डर जनरेशन को। कितने लोग घर पे रहते हैं, कितने हॉस्टलाइट्स हैं घर पे रहने वाले लोग। हाँ, तो कभी न कभी फोन पे हेल्प कर देते हो ना मम्मी, चाची, ताई, नानी, दादी को। So this is the same thing. You have to take interest. The days you start taking interest now, you will be the one who will be, telling the older generation कि now this is come up new, ये नया है, ये नया है, इसको ऐसे लगाते हैं, इसको ऐसे करते हैं। इंटरेस्ट जिंदा रखने की शुरुआत होनी बाकी है। So these are the things that you remember, that you have to consider while designing the toilet. Next, concealed flush tank. कितने लोगों को पता था, कितनों को नहीं पता था? जिन्होंने हाथ उठाए वो थर्ड ईयर वाले हैं, सेकेंड ईयर वाले हैं। वेरी गुड। आपने देखा है कहीं कहीं पे दैट यू जस्ट हैव द फ्लश नॉब दैट यू आर ऑपरेटिंग, पर टैंक कहीं नजर नहीं आता है, वॉल के अंदर होता है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ कंसील फ्लश टैंक। यहाँ पे जिन्होंने हाथ उठाया वो कौन से ईयर में है? थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वालों को पता है? आवाज नहीं आ रही है। Why is it called a concealed flush tank? वॉल के अंदर पैक करने से क्या होता है? और ये वाले टैंक्स क्यों आए? पहला वाला टैंक क्या बुरा था? इसमें और जो 2 part सिस्टम WCs होते हैं, जिसमें पॉट होता है और वो टैंक होता है जो नजर आता है, पीवीसी फ्लश टैंक जो फ्लश करते हैं, उन दोनों में क्या फर्क है? कल को आपको पूछने वाले हैं आपके चाचा मामा, बेटा ये और ये इसमें फर्क क्या है, ये क्यों लगाना, ये है ना, क्या फर्क है? थोड़ा सा लाउडर माइक पास करेंगे प्लीज, फिर बाहर आवाज बहुत हो गई है। मैम ये वाले जो टैंक्स हैं इसमें 2 ऑप्शंस रहते हैं पानी मतलब फ्लश करने के लिए भी। तो लाइक फॉर यूरिन अगर कर रहा है कोई तो उसके लिए एक अलग वो रहेगा। यू मीन टू से हाफ फ्लश, फुल फ्लश ये होता है। वेरी गुड। देयर इज वन मोर रीजन टू। गुड दैट यू मेंशन दैट। एनीथिंग एल्स एनीबॉडी नोज अबाउट? यस, साउंड इंसुलेशन। yes yeah, that is one answer. Anything more? Yes, कैपेसिटी ऑफ द टैंक, मतलब रिफिल टाइम कम रहता है उसका। can you elaborate on that? लाइक जब कंसील्ड फ्लश टैंक को यूज करते हैं सो तुरंत रिफिल होता है, एंड द पीवीसी फ्लश टैंक टेक्स टाइम टू रिफिल। इतना मेजर भी टाइम डिफरेंस नहीं है, इसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। मतलब इट इज नॉट अ किलर कि ये रॉकेट है और वो पैसेंजर ट्रेन है, इतना डिफरेंस नहीं है। होता है, डिफरेंस है। What you are saying is right. There is a difference in the refilling time, but there is a stark difference which is very important, because of which these are preferred nowadays. Usage of water.
The quantum of water used to flush by a PVC tank versus quantum of water used to flush with a concealed flush tank, इसमें प्रेशर बिल्डिंग करके कम पानी में फ्लशिंग एक्शन है, तो आपका पानी कम यूज होता है. ये बहुत बड़ी बात है आज के दिन में, जब देयर इज सो मच शॉर्टेज ऑफ वाटर एवरीवेयर. So that is a primary reason people are preferring this. Less wastage of water. इसमें स्लिम ही होते हैं. इसमें कंपनी टू कंपनी द वाटर कैपेसिटी डिफरेंस विल बी लाइक 200-300 ml, नॉट मोर देन दैट. कोई किसी का 4.5 लीटर का है, किसी का 4.25 लीटर का टैंक है, ऐसे इतना ही डिफरेंस है कंपनी टू कंपनी, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है. एंड शेप ऑफ द टैंक में हल्का हल्का डिफरेंस है. ओके, ये जो टैंक जिस चीज पे बिठाया गया है, ये जो ब्लू कलर का है, ग्रे कलर का है, उसको क्या बोलते हैं और वो क्या चीज है, वो उसकी क्या जरूरत है? आप लोगों ने इसके डायग्राम्स बनाए हैं फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर में कभी? फोर्थ ईयर गाइस, ओके. हैव यू कम अक्रॉस दिस व्हाइल स्टडीइंग इन थर्ड ईयर? ये आपने देखा है इस चीज को फोटोग्राफ में, डायग्राम में देखा है? इसके ऊपर कुछ इलैबोरेट इंफॉर्मेशन है आपके पास? नहीं. ये क्या है जो फ्लश टैंक के आजू बाजू में वो ब्लू कलर का है? इट्स अ मेटल फ्रेम दैट इज कॉल्ड अ चेयर ब्रैकेट. मेटल का पूरा फ्रेम है जिसपे ये टैंक, ये जो ब्लू यहाँ पे जो है, देयर इज अ फिटिंग सिस्टम फॉर द टैंक. ये टैंक इस जो मेटल का पूरा स्ट्रक्चर है उसमें यहाँ पे अटकता है. एंड देन इस टैंक से पानी जो निकल रहा है, ये पाइप ये है, ये पानी वाला पार्ट आपके WC से कनेक्ट होता है, जहां से आपका फ्लशिंग के समय पानी आता है, और ये WC का आउटपुट है, ड्रेनेज, सुवेज. ओके, नाउ देयर इज अ रेड बॉक्स एंड देयर इज अ ग्रीन बॉक्स. कैन यू जस्ट लुक एट द पिक्चर एंड टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? अभी आप लोग को थोड़ा कम मालूम है, इसलिए आई वोंट रियली इंसिस्ट कि आपको जवाब पता होना चाहिए, पर देख के कुछ समझ में आ रहा है कि दोनों में क्या डिफरेंस है. थोड़ा माइक पास करो प्लीज, बाहर बच्चे आ गए हैं. मैम टाइप बी में फ्रेमिंग है पूरी जो आप बता रहे थे, और टाइप ए में है नहीं. हाँ, वो नहीं है. उससे क्या फर्क पड़ सकता है इसके बारे में थोड़ा सा सोच के देखो. उसको वॉल में माउंट करने में इजी रहेगा. टाइप बी, टाइप ए वॉल माउंटिंग में इजी रहेगा. टाइप बी में क्या? टाइप बी वॉल माउंटिंग में इजी रहेगा ना. टाइप ए वॉल पे ही माउंट होता है, उसमें फ्लोर पे कुछ भी नहीं हो रहा है. और टाइप बी जो है वो फ्लोर सपोर्टेड है. उसका नीचे का पार्ट जो है, टाइप बी में जो सबसे नीचे वाले जो लेग्स के जैसा दिख रहा है, नीचे जो पार्ट दिख रहा है, दोज आर द थिंग्स दैट आर फिटेड ऑन द फ्लोर. टाइप बी में now you see there is a different color here other than blue. नीचे का पार्ट का कलर अलग है, इसमें भी नीचे के पार्ट का कलर अलग है. वो क्या है? वो उसमें एक बॉल सॉकेट जैसे बोलते हैं कि एक के अंदर एक घुसने वाली चीज बोलते हैं ना, जैसे. ब्लू फ्रेम इज द फिक्स फ्रेम and the lower legs are adjustable. The lower legs are adjustable because when you place them on the floor of the bathroom, उनको लेवलिंग के लिए थोड़ा सा स्कोप ऑफ एडजस्टमेंट चाहिए प्लम्बर को. इट कांट बी सो रिजिड कि वैसे के वैसे बैठा है. कभी बाथरूम में हल्का स्लोप देना होता है, कुछ रहता है. वी नीड दैट काइंड ऑफ एडजस्टमेंट. इसके लिए वो जो गोल्डन वाले पाँव हैं वो थोड़े से ऊपर नीचे आते हैं फिटिंग के समय, और फिर वो फिट होता है. नेक्स्ट अच्छे से समझ में आएगा. देखो, ये जो टैंक के साथ में जो है, टैंक लगा हुआ है, टैंक में से वो आउटलेट का पाइप लगा हुआ है राइट साइड के डायग्राम में. उसके नीचे सीवेज की पाइप लगी हुई है, और उसके नीचे वो जो गोल्डन वाले हैं वो नीचे आए हैं. अभी आपका क्वेश्चन मेरे से होना चाहिए कि टैंक कहाँ गया? अभी तो दूसरे लेफ्ट वाले डायग्राम में तो हमें WC नजर आने लग गया सडनली.
राइट, और राइट में सिर्फ बेयर टैंक दिख रहा है, तो ये गया कहाँ? जहाँ पे WC इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें जो सबसे ऊपर ये जो दिख रहे हैं, ये पोर्शन, ओके, दीज आर कॉल्ड रैग बोल्ट्स, रैग, RAG, रैग बोल्ट्स। वो यहां से निकलते हैं और उसके ऊपर WC फिट हो जाता है। तो the rag bolts are strong enough to take the weight of the WC and the weight of the person up to 120 kgs. जो वॉल माउंटेड है, तो वॉल माउंट किस चीज पे किया? इस पे किया। इज दिस अ यूजफुल इंफॉर्मेशन, और ये पता थी पहले से? यूजफुल। दूसरा, उसके WC के नीचे जो पाइप है, WC की खुद के अंदर एक बिल्ट इन पाइप है, दैट इज कनेक्टेड विद द 4-inch लाइन हियर, तो वो आउटलेट हुआ। तो अगर हमने प्लम्बिंग पहले ही कर दी होती, बिना प्रोडक्ट सिलेक्ट किए, उस समय एस ट्रैप के हिसाब से कर दी होती, उसका क्या यूज होता? तो हमें प्रोडक्ट सिलेक्ट करना जरूरी है before we do the plumbing for the bathrooms. I know it's not a very pleasing diagram. We rather see some good designs of bathrooms. I know it is not very interesting. इतना भी बहुत खुश मिजाज सा पिक्चर नहीं है ये, मुझे पता है, पर ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज अगर ये कैसे फिक्स होता है पता नहीं चलेगा, तो कल को कैसे कन्विंस करोगे कि 20,000 रुपए, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए का WC खरीदना है? Diagram below on the left side, that gives you the height at which the WC seat is to come. मेरे ख्याल से ये थोड़ा बहुत आपको याद होगा, किसी को याद होगा, किसी को नहीं होगा, कोई तुक्के मारेगा, पर ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट डिमेंशन है, ये फॉर लाइफ लगता है, चीज लगती है। इसलिए ये थियोरी पेपर है और मैं लिख के भूल जाऊंगा मत करना, ये जरूरी है। और ये थ्रू आउट द लाइफ, जितने साल आप आर्किटेक्चर प्रैक्टिस करोगे या जॉब करोगे, जो भी करोगे, ये लगने वाला डायमेंशन है, तो इसको मत भूलना। ओके, एनी क्वेश्चंस एट दिस लेवल? प्रीवियस स्लाइड पे जाना। टाइप बी में 3 चीजें क्या है? टाइप बी में 3 चीजों में से राइट के 2 जो हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, उसमें लेग का टाइप अलग है। राइट के जो 2 हैं वो, उसमें सपोर्ट लेग्स का पोजीशन अलग है, एक में एंड में है, एक में सेंटर में है। दिस इज ब्रांड टू ब्रांड, अलग अलग कंपनीज के अलग आते हैं, और इसमें फर्क ये है कि द टैंक इज माउंटेड इन द वॉल। ये टैंक को फिट करने के लिए ये ब्रैकेट दे दिया है, वो वॉल में फिट होगी, और सिर्फ नीचे WC को फिट करने के लिए छोटा चेयर ब्रैकेट दिया है। इस केस में, ये वाले केस में फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप टैंक का हाइट थोड़ा बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो आपके एस्थेटिक रीजन से, बिकॉज इट इज नॉट बाउंड दैट इट इज गोइंग टू फिट इनटू दिस। तो आप आपके डिजाइन में कुछ एस्थेटिक रीजन से अगर उसको थोड़ा ऊपर ले जाना चाहो, तो उस केस में वो फैसिलिटी है। नाउ ईच कंपनी सेल्स द WC सेपरेट, द चेयर ब्रैकेट सेपरेट, द टैंक सेपरेट। WC विद फ्लश टैंक, आपको लगता होगा ये 1 आइटम है, पर ये 1 आइटम नहीं है। यू हैव टू ऑर्डर द WC सेपरेट। आपको मॉडल नंबर बताना पड़ेगा, कैटलॉग में देख के या दुकान में जाके सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे ये वाला चाहिए। वो पूछेगा इसके साथ फ्लश टैंक कौन सा वाला दूं सर या मैम, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। चेयर ब्रैकेट कौन सा वाला लगेगा, ये सारे सवाल वो आपसे पूछने वाला है, जिसके जवाब आपको उसको देने पड़ेंगे दुकान वाले को। दैट डजंट मीन कि आप ये चीज को याद रखो, आप याद ये रखो कि इतने वेरिएंट्स होते हैं, और जब आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करोगे तो उतने वेरिएंट्स में से प्रोडक्ट सिलेक्ट करते समय आपको बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए ना, कि आपके डिजाइन में क्या फिट हो रहा है, उसके हिसाब से सिलेक्ट करने के लिए। जो पी ट्रैप वाटर क्लोजेट है, वो मतलब टाइप ए वाटर टैंक उसे होल्ड कर सकता है वॉल में? पी ट्रैप के लिए ही टाइप ए में होल्ड करेगा,
आपने जैसे बताया था कि बी टाइप होल्ड करेगा क्योंकि वो ग्राउंड से पी ट्रैप जो है पी अल्फाबेट बना रहा है हाँ, ये, और हाँ। स्ट्रेट, जब स्ट्रेट जा रहा है तो दीवार में जा रहा है, तो इसमें जा रहा है आउटलेट। ठीक है। उसको फिट करने के लिए वो जो रैक बोल्ट्स हैं ये 2 आ गए, उसके ऊपर आपका WC बैठ गया। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट स्लाइड थी आपकी, उसमें भी वो मतलब नेक्स्ट वाला स्लाइड, हाँ इसमें भी वॉल माउंटेड ही है ना वाटर क्लोजेट, हाँ, और इसमें तो फिर बी टाइप यूज हो रहा है, क्या बी टाइप वाटर टैंक यूज हो रहा है, जबकि वो वाटर क्लोजेट माउंटेड है, वॉल माउंटेड है। मतलब जैसे आपने बताया कि ए ट्रैप पी एक मिनट वापस पहले वाले से, ये सारे जो है ना, ये जितने वाटर टैंक हैं, ये जितने वाटर टैंक हैं, ये सारे के सारे वॉल माउंटेड ही वाटर टैंक्स हैं, और ये वॉल माउंटेड WC के लिए हैं, एस टाइप के लिए नहीं एस के लिए नहीं है। ठीक है। ये सारे ही पी के ऑप्शंस हैं। ओके, तो एस के लिए मतलब ऐसे बाहर ही देना पड़ेगा जो एस के लिए एस के लिए इस टाइप का प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, पर उसका वो ये यूज करते हैं जिसमें सिर्फ टैंक आता है, और टैंक से ये जो आउटलेट है ये जोड़ देते हैं, फिर वो टैंक कहीं पे भी हो सकता है। एस के लिए वो जो ब्रैकेट जो लाल और ग्रीन में नहीं रखे हैं उधर है, वो यूज हो सकते हैं। गुड क्वेश्चंस, गुड, आई एम हैप्पी यू गाइज आर आस्किंग क्वेश्चंस। इसमें आपको दिखेगा कि ये देखो ये लेग्स हैं, ये ऐसे फ्लोर पे आते हैं। नाउ ये जो कंसील फ्लश टैंक होती है, ये कभी भी मेन वॉल को तोड़ के उसके अंदर नहीं घुसाई जाती। मेन वॉल मतलब आपका जो स्ट्रक्चरल बेसिक वॉल है, इधर इट्स अ 150 mm और 230 mm वॉल, तो 230 वाले में फिर भी स्कोप है कि थोड़ा सा चिजलिंग करके उसको पार्टली अंदर डालें, पर अगर सिर्फ 150 mm का वॉल है तो उसके केस में तो ये नहीं अंदर जाते हैं। क्वेश्चंस? जैसे अभी आपने पूछा था उधर कि सिलेक्शन पहले करना है कि प्लम्बिंग पहले, तो मैम जब हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं एक वॉशरूम की, टॉयलेट की, तो मैम हमें ये तो मतलब पहले पता ही है ना कि WC कहाँ पर आ रहा है, शावर कहाँ पे आ रहे हैं और सिंक कहाँ पे आ रहा है, तो उसके हिसाब से जो फ्लोर में प्लम्बिंग जो फ्लोर में पाइप्स डलते हैं, लाइक जो सॉइल पाइप डलते हैं और जो बाकी के स्मॉल पाइप्स डलते हैं, तो वो तो मैम डिपेंड नहीं करता है ना सिलेक्शंस पे कि उसमें व्हाई इट वर्क्स बेटर फॉर सिलेक्शन इज बिकॉज ऑफ द WC। हाँ, मतलब अगर WC हमारी वॉल माउंटेड है हाँ, तो भी पर soil pipe तो WC रहेगा, नहीं, but WC ऊपर- में वॉल माउंटेड में आप जो मॉडल ले रहे हो, हर एक का जो ये बाहर निकलने वाला पाइप है सीवेज का, ये हर कंपनी के हर मॉडल का 6, 8, 10, 12 mm से ऊपर नीचे होता है, और ये आप नीचे वाला काम कर लोगे, फ्लोर की नीचे वाला जो नहीं दिख रहा है, पर ये जो एल्बो बेंड है, ये एल्बो बेंड आपको कनेक्ट तो उसी से बाद में करना है, तो कनेक्ट जो करना है वो कितना ऊपर लाना है, आप मैक्सिमम नीचे का काम करके ऊपर वाला बेंड का काम छोड़ सकते हो। Exactly. पर वो उसमें फिर वो जो जॉइनरी होती है, ये जो जॉइनरी है यहाँ से जो नीचे जाने वाली जॉइनरी है, यहाँ पे अगर ब्रिक बैट कोबा का ऑप्शन है तो इट्स इजियर, बट इन केस ऑफ PT slabs and all, very less space is there, so you have to be very, you have to be very precise in the way you're designing the toilets। तो जॉइनरी में लीकेज नहीं आए इसलिए ये पूरी चीज एक साथ की जाती है, बिकॉज जो पाइप्स अवेलेबल हैं मार्केट में, वॉट एवर मल्टीपल ब्रांड्स आर देयर, लाइक सलमान खान किस पाइप की एडवर्टाइज करती है, एस्ट्रल, किससे मारता है सलमान सबको, एस्ट्रल के पाइप से मारता है, एस्ट्रल है, देयर आर अदर प्रिंस है, दूसरे हैं, इसके जॉइनरीज आते हैं, पर उसके जॉइनरी के साथ में देयर इज अ काइंड ऑफ केमिकल कोट दैट दे गिव अलोंग विद द जॉइंट। जो कपलिंग आता है, जब वो बिठाता है प्लम्बर, कपलिंग को बिठाता है, ऊपर का पाइप, नीचे का पाइप और ये कपलिंग की वहां का जो बाहर का कवर, उसको बिठाते समय देयर इज अ काइंड ऑफ अ केमिकल ही विल एडेसिव के जैसे आप सेलो टेप लगाते हो, एब्रो टेप लगाते हो, टेप्स लगाते हो, वैसे उसमें एक एडेसिव लगा के वो पाइप फिक्स किया जाता है, और जब उसको बार बार शिफ्टिंग की जाती अगर की जाएगी तो फिर उसके केस में फिर उसकी लीकेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। वेरी प्रैक्टिकल नॉलेज विच यू विल नॉट गेट इन बुक्स। तो जितना सुनोगे, जितना पूछोगे, उतना ज्यादा सीखोगे, because this is something that even I have learned in so many years after going on sites and getting things done.
ये बुक वाली नॉलेज नहीं है, ये प्रैक्टिकल वाली नॉलेज है। जितना बेनिफिट लेना है ले लो, राइट? तो ये समझ में आया। अब WC वो पहले वाले डायग्राम में दिखाया कैसे बैठा है, और फिर यहाँ पे दिखाया कि वो ब्रैकेट पे बैठने के बाद कैसा दिखता है। नाउ दिस एंटायर टैंक goes behind a wall. As I mentioned, we cannot break the main structural wall if it is only 150 mm thick, but if it is 230, partly chisel कर सकते हैं। जनरली ये जो वाटर टैंक होता है इसका थिकनेस इज बिटवीन 80 to 85 mm। इसके ऊपर कंक्रीट, प्लास्टर और टाइल लग के ये वॉल आनी चाहिए 120 mm तक। मैनुअल एरर की वजह से वॉल थिकनेस 150 mm तक आती है। तो बहुत सारे केसेस में आपको ऐसी लेज वॉल आगे आई हुई दिखती है, ऐसी दिखती है, उसके आगे WC होता है और फ्लश प्लेट यहाँ होता है। नाउ फ्लश प्लेट को बोलते हैं एक्चुएशन। फ्लश प्लेट क्या काम करता है? इट एक्चुएट्स द टैंक फॉर फ्लशिंग। तो इसमें फ्रंट एक्चुएशन और टॉप एक्चुएशन से दो वेरिएंट्स भी आते हैं। दैट इन आपको अगर डिजाइन में ऐसे करना है कि आपको वॉल लो करनी है और आपको यहाँ पे कुछ निश देना है, जैसे कि स्क्रीन में दिया हुआ है, तो आपको फिजिकली पॉसिबल नहीं कि आपका एक्चुएशन फ्रंट पे आए। तो यू विल हैव टू आस्क योर वेंडर कि इसमें टॉप एक्चुएशन वाले टैंक के कौन से ऑप्शंस हैं। टॉप एक्चुएशन मतलब उसकी बटन ऊपर, सिंपल लैंग्वेज में बताऊं यहां, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्चुएशन। और सामने फ्लश प्लेट आएगी तो उसको बोलते हैं फ्रंट एक्चुएशन। एक्चुएशन सिर्फ एक वर्ड है, इससे डरो मत, पर मार्केट में बोलते समय वही बोलना पड़ता है, वही ऑर्डर करना पड़ता है। सो यू हैव टू रिमेंबर इट ऑल्सो, राइट? सो देयर विल बी 2 ऑप्शंस इन केस ऑफ कौन सा चाहिए। 99% ऑफ द टाइम्स आपको फ्रंट एक्चुएशन ही लगने वाला है, पर कुछ ऑड एंटनी गाउडी टाइप डिजाइन करने की सोची लाइफ में तो लग सकता है आपको टॉप एक्चुएशन। एज आई आस्क्ड यू, WC के कॉस्ट की आइडिया हमने ली थी पहले, एक पूरे बाथरूम की कॉस्ट की आइडिया ली थी। डू यू नो द how many of you keep on watching the reels and something on Instagram which show about designs? Or देखते हो, सब लोग देखते हैं, all the kids must be watching. Only 2 of you. What are the rest doing in life? Okay. सब लोग अभी अपना फोन अनलॉक करो, सिर्फ अनलॉक करना है। अनलॉक करके सब लोग बोलो बाथरूम। एक और बोलो बाथरूम, एक और बार बोलो बाथरूम। अब तुम्हारे इंस्टाग्राम पे बाथरूम की वीडियोस आएंगे, राइट? जब कुछ फैंसी वीडियोस देखोगे तो देखने की कोशिश करो कि WCs रेवोल्यूशनरी तरीके से चेंज हो चुके हैं। यू नो हाउ कॉस्टली अ पॉट कैन बी। You see the round ones are the Stefano model. The costing of the Stefano model is between $2,600 to $2,900. This is the Inax from USA. That is $8,500. $8,500. Max karo. 80 multiplied by 8,500. Fatafat. The client comes to us and asks us, we have a bungalow with 6 bedrooms and 5 bathrooms. What should we consider the budget? We say we can give you a starting point. We can't give you the end point. Why? Because a bathroom can happen in 2.5 lakh and a bathroom can also happen in 20 lakhs. A bathroom. Travel to Mumbai and stuff. Even Kohler has this product. Kohler ने भी निकाला है, उनका भी 3.5 लाख का है, टोटो का है। आप नजदीक जाते हो, the flap opens. You sit, you can program it. The seat temperature, you can program the seat temperature. भैया गर्मियां शुरू हो गई है, मुझे ठंडा चाहिए। अभी ठंड शुरू हो गई है, मुझे गर्म चाहिए। Then you have an entire system in Toto. तो पूरी रिमोट कंट्रोल के जैसा बटन का पैड है टोटो में तो पूरा, जिसमें आप म्यूजिक कस्टमाइज कर सकते हो, आप पॉडकास्ट लगा सकते हो, आपका चार्जिंग डॉक है, सब कुछ है। पता नहीं इतनी चीजें क्यों दी है, बिकॉज दिस इज नॉट अ वेरी हाइजीनिक प्लेस। ये सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम्स हैं इसके अंदर, मतलब इसके अंदर they guarantee that no bacteria and microbes are left after the flushing is done.
And guys, one social request from my end to all of you: close the lid while flushing, all of you, every time. Don't keep the lid open and flush. बहुत हजारों लाखों कीटाणु आपके कपड़ों पे आते हैं. Flush. Everyone, every time. चाहे number 1 हो चाहे number 2 हो, close the lid and flush. So this is the state में आज की दुनिया यहाँ पहुंच गई है. और you are the future architects to use this लाखों करोड़ों का सामान. कितने लोगों ने ये देख के सोचा कि एक बार तो मैं ये यूज करूंगा या करूंगी. खुद के लिए नहीं, क्लाइंट के लिए. क्लाइंट के लिए तो हर कोई कर सकता है. Any questions? Okay, now we are shifting from WCs to the next thing that is fitted in the bathrooms. Next. वो जोन खत्म हो गया. अब पानी में आ गए हम लोग. अब सफाई अभियान शुरू हो गया. हाथ धो, नहाओ धो, सब शुरू हो गया. हाँ बोलो. माइक प्लीज पीछे पास कर दो. मैम, बिना वाटर टैंक के डायरेक्ट पाइप से फ्लशिंग सिस्टम का वैसा नहीं होता है कुछ? हाँ, एरोप्लेन्स में होता है. उसमें वैक्यूम सिस्टम्स होते हैं, उसमें सक्शंस होते हैं. पर वो जो सिस्टम्स होते हैं उसमें जेल्स यूज होते हैं. वॉट एवर इज डेफिकेटेड इन द पॉट इज कन्वर्टेड इनटू अ जेल. एरोप्लेन्स में क्या होता है? एरोप्लेन्स में सिर्फ एक आवाज आती है तो सब गायब हो जाता है. स्टार्ट विद नेक्स्ट थिंग. ये करना है, ये पता है. इसको स्किप कर दूं? स्किप करूं या कंटिन्यू? ओके. अभी बेसिन्स के टाइप्स देख के पता है सबको? जो सेकेंड ईयर में उनको भी कम से कम देख के तो पता होंगे ना. कुछ बेसिन काउंटर के नीचे लगते हैं, कुछ काउंटर के ऊपर लगते हैं. इतना बेसिक तो पता है, ठीक है. अब जब काउंटर के नीचे लगते हैं और काउंटर के ऊपर लगते हैं, इसमें हमारे डिजाइन में क्या फर्क पड़ता है? हाइट. वेरी गुड. और टैप्स के भी टाइप आपको इसमें दिख रहे हैं. आई हैव पुट द टेक्स्ट. आपको अगर वर्ड्स याद रखने तो आप रख लो. जो टैप बेसिन में कार्व आउट करके लगती है, जिसमें अंदर कार्विंग की हुई है, उसको मोनोब्लॉक बोलते हैं. उसके अंदर से वो टैप की सारी पाइपिंग आती है, इसलिए उसको मोनोब्लॉक बोला जाता है. देन दिस इज अ टेबल टॉप पिलर टैप बोलते हैं. वर्ड्स दिए हुए हैं मैंने उसके साथ में. whoever wants to note down can note down because this is for me, I think it is very basic. हो सकता है आपको पता होगा तो मैं वो चीज बोल के नहीं बता रही हूँ. ठीक है. किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क. बट आई फील इतना आप लोग को पता है, इसलिए नॉट टेलिंग यू द वेरी बेसिक थिंग्स. ठीक है. अब इन केस ऑफ मोनोब्लॉक्स और इन केस ऑफ टेबल टॉप्स माउंटेड. ठीक है. एंड देन देयर आर फ्लोर माउंटेड. तो टैप्स के हो गए 4 टाइप. एक हो गया जो बेसिन में ही होल गिरा हुआ है, उसी में नल आया. दूसरा आया टेबल टॉप, वॉल माउंटेड एंड फ्लोर माउंटेड. इन सब में हमें प्लम्बिंग में क्या अलग अलग ध्यान रखना पड़ेगा? ओके. सबको बेसिन वाली प्लम्बिंग बहुत अच्छे से याद होगी. बेसिन का वाटर सप्लाई कहाँ देते हैं? स्टैंडर्ड जो आपने सीखा होगा, काउंटर के नीचे 400 हाइट पे कोल्ड वाटर हॉट वाटर इनलेट डायग्राम किया होगा ना. नेक्स्ट. ऐसा कुछ किया होगा ना, 3rd या 4th किया होगा. इसमें फर्क क्या पड़ा? एक है अंडर काउंटर सिंक है और एक है टेबल टॉप सिंक है. इसमें दोनों में अंडर काउंटर के केस में अंडर काउंटर सिंक में भी वॉल माउंटेड टैप लग सकता है, अंडर काउंटेड सिंक के साथ भी टेबल टॉप टैप लग सकता है, या उसमें भी मोनोब्लॉक हो सकता है. टैप अपने डिजाइन पे डिपेंड करेगा हम कैसा बेसिन ले रहे हैं. तो एक हो गया बेसिन का सिलेक्शन. बेसिन के सिलेक्शन पे डिपेंड हो गया आपका काउंटर का हाइट,
काउंटर देना है या नहीं देना है, वहां से शुरुआत होती है. कभी कभी वॉल माउंटेड सीधा बेसिन भी होता है कि वो जो दीवार में ही लग जाता है. ठीक है, तो काउंटर देना है या नहीं देना है. दूसरी बात, अगर देना है तो अंडर काउंटर के केस में आपका 800 या 820 mm का हाइट हो गया अंडर काउंटर का, टॉप का हाइट बेसिन के काउंटर का. अगर काउंटर टॉप बेसिन है तो आपको बेसिन की खुद की हाइट कंसिडर करनी है आपके काउंटर की हाइट लेवल निकालने के लिए. यही सबसे ज्यादा गलती होती है. या तो काउंटर बहुत लो हो जाता है या काउंटर बहुत ऊंचा हो जाता है और फिर वो पूरा एस्थेटिक और पूरा सब यूजेज बिगड़ जाता है. वॉल माउंटेड टैप जो है, वॉल माउंटेड टैप और आपकी बेसिन के एज के बीच में डिफरेंस 200 mm का रखिए. प्रीवियस स्लाइड पे जाइए, पहले वाले पे. इसमें देखिए दैट द लिवर इज एट अ डिफरेंट पोजीशन एंड द टैप इज एट अ डिफरेंट पोजीशन. नाउ व्हेन यू डू द प्लम्बिंग का मतलब आप इसको जब पाइपिंग करोगे, आपका सारा वाटर सप्लाई जो है वो आप कंट्रोल को कनेक्ट करोगे और पानी निकलेगा स्पाउट में से. तो आपके डायग्राम में बेसिन के सेंटर में एक सिर्फ पॉइंट आएगा और सप्लाई उसके सेंटर से ऑफ सेंटर में जाएगा. नाउ इन केस ऑफ वॉल माउंटेड टैप, यूनिलीवर बायलीवर दोनों अवेलेबल है. मतलब इसमें सिर्फ कोल्ड वाटर टैप्स भी अवेलेबल होते हैं और इसमें हॉट कोल्ड मिक्सर भी अवेलेबल होता है. जो नल को देख के समझ में नहीं आता है, आपको ऑर्डर करते समय ध्यान रखना पड़ता है कि आपको हॉट एंड कोल्ड वाला चाहिए या सिर्फ कोल्ड वाला चाहिए, वो ऑर्डर करते समय ध्यान रखना पड़ता है. एंड सिमिलरली आपको प्लम्बिंग के समय भी ध्यान रखना पड़ता है. अगर हॉट एंड कोल्ड देना है तो दो हॉट एंड कोल्ड का पूरा सप्लाई इसमें जाएगा और यहां से यहां एक अपने आप अंदर पाइप है जो कनेक्टेड है, तो ये अपने आप इधर से यहां पहुंच जाएगा. नॉर्मल नल में कैसा होता है, यू हैव एंगल कॉक्स या नीचे एंगल कॉक्स होते हैं, वहां से फ्लेक्सिबल पाइप से आपके बेसिन के नल को कनेक्शन होता है. कितने लोग हॉस्टल में रहते हैं, कितने घरों पर रहते हैं, सब लोग बेसिन के नीचे प्लीज जाके आज देखिए अपने घरों के या रूम्स के. वन रिक्वेस्ट, सी हाउ द बेसिन इज कनेक्टेड विद द पाइप. फ्लेक्सिबल पाइप से कनेक्ट होता है जो काउंटर पे होता है, उसमें नीचे कोल्ड और हॉट आया हुआ होता है. वॉल वाले टैप में नीचे एंगल कॉक देने की कोई जरूरत नहीं है. यू हैव टू गिव डायरेक्ट सप्लाई हियर. उसमें कंट्रोल की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट सप्लाई देना है इसको. लाइन्स आ जाएंगे, यहीं पे दोनों लाइन्स उसमें कनेक्ट होंगी. दैट इज द डिफरेंस. इस केस में इनमें सब में काउंटर के नीचे आपको स्टॉप कॉक्स एंगल कॉक्स लगा के उसके थ्रू फ्लेक्सिबल पाइप से आपको इसमें कनेक्ट करना है. राइट साइड में वॉल माउंटेड टैप है, लेफ्ट वाले में टैप का डिटेल नहीं है, आउटलेट का डिटेल है. नाउ देयर इज लॉट गोज बिलो द बेसिन आल्सो. जो बेसिन के नीचे जाता है उसको क्या बोलते हैं, जिसमें से पानी बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं. ये देखा होगा ना ऐसा कुछ, इसको क्या बोलते हैं. फोर्थ ईयर पता होना चाहिए था, भूल गए. वेरी गुड, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द बॉय. ओके, बॉटल ट्रैप की क्या जरूरत है. नॉर्मल पाइप लगा के भी तो पानी निकल सकता है, बॉटल ट्रैप की क्या जरूरत है. फ्लेक्सिबल पाइप भी तो लगती है ना, बहुत जगह अभी भी लगाते हैं. इम्पोर्टेंट चीज अपने गिर जाती है तो वो उसमें जाके रुक जाती है, तो वहां से अपन उसको ओपन करके निकाल सकते हैं. Yes, चोक नहीं होता. this is one reason. What else? Odor trap करता है. Yes. What else? Back crawling of insects prevent करता है. लाइंस में जो इंसेक्ट्स होते हैं वो ऊपर नहीं आ पाते हैं. एंड साउंड ऑफ द वाटर, जो आप पाइप में से पानी जाएगा उसका आवाज वर्सेस ट्रैप में से जाएगा उसका आवाज, साउंड डजंट आता है. क्लीनिंग इज इजी. चोक होता है तो इसको खोल के साफ करना इजी होता है. ये 4-5 रीजन है. इसका मतलब इट इज जस्ट लाइक, इट्स नॉट लाइक कंपल्सरी टू यूज इट, बट इट इज गुड टू यूज इट. अभी इसमें भी बहुत मटेरियल्स में अवेलेबल है, जरूरी नहीं कि आपको स्टील का ही लेना है. नेक्स्ट, पीवीसी में है, एमएस में है, ब्रास में है, स्टील में है, सब में आता है. स्टील वाले में रिजिडिटी ज्यादा है, उसका एक डेफिनेट हाइट आता है, डेफिनेट बॉडी आती है. अगर आपका आउटलेट उस हाइट पे निकला हुआ नहीं रहेगा गलती से वॉल में से जिसपे बॉटल ट्रैप लगाना है, तो उस केस में पीवीसी वर्क्स बेटर. पीवीसी वाले में यू कैन ऐड एल्बोज बैंड्स एंड एडजस्ट योर आउटलेट. इसमें वो
प्लम्बिंग के फ्लेक्सिबल पाइप भी नजर आ रहे हैं राइट साइड के इमेज में, जो बेसिन के टैप को पानी लेके जाते हैं। वो स्टील के फ्लेक्सिबल टाइप के पाइप दिख रहे हैं, उससे हम बेसिन के पाइप नल को पानी जाते हैं उसमें से। अभी तक जो जो बातें की है, जो जो फोटो देखे, उसमें कुछ चीजें क्लियर हुई थोड़ी जो पहले नहीं थी उससे? इज इट बेटर नाउ, गेटिंग क्लियर? नेक्स्ट, बॉटल ट्रैप लगाते कैसे हैं एंड देन उसका एलिवेशन, ये सब आपने किया हुआ होगा। ये किया होगा ना? Basins and taps and traps. I'm closing at this. We are shifting to another topic. Anybody else has any questions? ये वाले zone में? The terminology that is used here. पता थी सबको किसको क्या बोलते हैं? पता थी। किसके लिए नया है ये? Like the words, I mean. देखिए सबने है, पर उसको क्या बोलते हैं? For whom is it new, the terminology? किसके लिए न्यू है ये टर्मिनोलॉजी? ओके, सो रेस्ट ऑफ द पीपल नो व्हाट इज अ डायवर्टर, व्हाट इज अ थर्मोस्टेट एंड व्हाट इज अ मिक्सर. नाउ टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डायवर्टर, थर्मोस्टेट एंड मिक्सर, नाउ दैट 99% ऑफ द पीपल हियर नो अबाउट इट. फटाफट आंसर चाहिए. क्या फर्क है सब में? फर्क क्या है सब में? बेसिक डिफरेंस नीचे टेक्स्ट में लिखा हुआ है, वो पढ़ भी लोगों तो दिख जाएगा. कैन somebody read it aloud? कोई माइक लेके इसको लाउडली रीड कर दो. नीचे के 2 पॉइंट्स हैं वो. किसके पास है माइक? या गो हेड. Thermostat, a device that detects temperature changes and maintains a set temperature in a system. Thermostats are used in many devices and systems, including air conditioners, water heaters, and ovens. Diverter, a mechanical device that redirects or splits the flow of fluid or gas into multiple directions. For example, a diverter can redirect water from shower spout to a shower head. Okay. ऐसा पढ़ के याद रहेगा या हिंदी में एक्सप्लेन करूं? एक्सप्लेन करो या ओके है? एक्सप्लेन या ओके, 2 वर्ड में से चूज करो. ओके. Now, why do you need me to explain when you already know what is a thermostat and a diverter? क्यों जरूरत लग रही है एक्सप्लेन करने की? नहीं बोल सकते हो क्यों लग रही है? क्योंकि ये सिर्फ एक डेफिनेशन है. डेफिनेशन के बाहर क्या है? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ थर्मोस्टेट यूज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या डाइवर्टर यूज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या थर्मोस्टेट आजकल क्यों आया है, डाइवर्टर पहले था? ऑब्वियसली दीज आर द चेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज, राइट? ये पुराना, ये बीच वाला, ये सबसे नया. ये क्यों आया है और इसकी क्या जरूरत है? सबसे मेन रीजन है नो लॉस ऑफ कोल्ड वाटर इन केस ऑफ थर्मोस्टेट. आप इसका एक बार टेम्परेचर सेट करते हो तो जैसे ही पानी शुरू होता है आपको उसी टेम्परेचर पे पानी मिलता है. इन केस ऑफ डाइवर्टर इट स्टिल टेक्स fraction of seconds and couple of ml of water to get mixed together and it reaches you. तो थोड़ा पानी का लॉस होता है. अदरवाइज आप बोलोगे कि शावर में से पानी कैसा आ रहा है, प्रेशर कैसा आ रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं है. इट इज वेरी गुड, बोथ ऑफ इट इज वेरी वेरी गुड. उन दोनों में कोई पैरेलल में कोई, एस्थेटिक्स में भी दोनों बहुत अच्छे हैं. डाइवर्टर भी थर्मोस्टेट भी दोनों इक्विवेलेंट है एक दूसरे के. इसमें सिर्फ एक छोटा यूएसपी है कि आपको टाइम ऑफ शावर बचता है. आपको वो जो आधा 1 मिनट रुकना पड़ता है वो नहीं रुकना पड़ता है. टाइम बचता है, पानी बचता है. पानी बचता है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है आजकल, इसलिए लोग ये खरीदते हैं. सेकेंडली, थर्मोस्टेट के साथ कंपैटिबिलिटी में जो शावर सिस्टम्स हैं ये बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं. जैसे हमने इसमें भी इसके पहले भी देखा कि WC के केस में देखा कि पी ट्रैप के साथ में कंपैटिबिलिटी में बहुत अच्छे अच्छे टैंक के ऑप्शंस आ गए हैं. उसी तरीके से थर्मोस्टेट पे बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन आ गए. डाइवर्टर वर्ड में ही आ गया. उसका मतलब क्या है?
वो पानी को कहीं कहीं पे डाइवर्ट करता है, मिक्स करके डाइवर्ट करता है। डाइवर्ट कैसे करता है? उसका लीवर जिस डायरेक्शन में घूमता है उस डायरेक्शन में वो पानी को डाइवर्ट करता है। अब सिंगल लीवर डाइवर्टर, ड्यूअल लीवर डाइवर्टर अलग अलग होते हैं, वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है, अगले स्लाइड में हम देखेंगे। नेक्स्ट, ऐसे कुछ बाथरूम्स नजर आते हैं। When you see the picture here onwards, उसके नीचे कुछ रेड टेक्स्ट में मैंने नोट्स डाले हुए हैं कि किस पिक्चर में क्या है। तो पहले लेफ्ट राइट साइड वाले पिक्चर में वी हैव अ डाइवर्टर, देयर इज अ फॉसेट, देयर इज अ हैंड शावर, देयर इज अ रेन शावर। फॉसेट किसको बोला? नल। ओके, अभी इसमें हैंड शावर का आउटलेट जो है वो फॉसेट्स में से लिया गया है। देयर आर वेज इन विच ये चीज यहाँ पे नहीं आती है और यहाँ बीच में कहीं पे भी आ सकती है डायरेक्ट, और उससे हैंड शावर कनेक्ट हो सकता है। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द फॉसेट। वो जो लंबा ट्रैवल है नल से लेके उधर का, वो बच जाता है। एंड यू हैव अ सेपरेट आउटलेट फ्रॉम विच द हैंड शावर कैन बी कनेक्टेड। हैव यू गाइस ट्राइड डूइंग द प्लम्बिंग ऑफ सच ए बाथरूम? फोर्थ ईयर किया है ट्राई? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसकी प्लम्बिंग करने के लिए ऐसा कुछ किया है ट्राई? I'll tell you one thing. I'm presenting tomorrow for first year and second year. What is the uniqueness in the study of architecture? उसमें सबसे बड़ा पॉइंट पता है क्या है? कि जब आपकी पढ़ाई की शुरुआत होती है ना, सारे सब्जेक्ट आपके सेपरेट होते हैं। कोई हिस्ट्री सिखाता है, कोई साइंस सिखाता है, कोई एस्थेटिक्स सिखाता है। Slowly as you move ahead in the years, the subject and the purpose starts overlapping. सब एक दूसरे में घुसता है, सारे सब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना शुरू करते हैं, और जब तक आप उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझोगे कि ये ओवरलैप कर रहे हैं, तब तक आप उन सब्जेक्ट को थ्योरी सब्जेक्ट करके छोड़ते जाओगे। ये गलती मैंने भी मेरे पढ़ाई के समय की है, मैंने भी बाद में ही सीखा है। मैंने क्या थ्योरी पढ़ना, क्या लिखना, उसमें बार बार लिखो। But then it took me another 5 years to, learn all of this. Now today I am telling this to you. You can take the advantage and learn it here onwards. इसके आगे पढ़ सकते हो। मैं ये नहीं बोल रही कि आप लिखो, लिख के आपका जर्नल में कितनी सुंदर हैंडराइटिंग है उसकी तरफ देखो। मैं ये बोल रही हूँ उसमें जो नॉलेज है, उसमें जो कंटेंट है, उसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको याद रखो, उसको अपने डिजाइन में अप्लाई करो। डाइवर्टर की प्लम्बिंग जो होती है उसमें हॉट एंड कोल्ड का जो लाइन आती है, या तो बॉयलर से या सोलर हीटर से, वो डाइवर्टर का जो लिवर वाला नॉब दिख रहा है उस पोजीशन पे मेन पानी को भेजा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में डायग्राम से पहले बोल के बताना है, डायग्राम आएगा बाद में। पानी सारा यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, और यहाँ के बाद आपने जितने प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, ऊपर वाला शावर, हैंड शावर, टैप, उसकी सबकी प्लम्बिंग इस डाइवर्टर में से ब्रांचेस में निकलती है और सबकी तरफ जाती है। इसके लिए इंपॉर्टेंट है आपका डाइवर्टर का हाइट क्या होना चाहिए, स्पाउट का हाइट क्या होना चाहिए, यहाँ से शुरुआत होती है। डाइवर्टर हमेशा स्टैंडिंग पोजीशन में ऑपरेट होता है ड्यूरिंग द शावर, सो यू फाइंड आउट योर कंफर्टेबल हाइट, और देयर इज अ स्टैंडर्ड हाइट, यू कैन यूज एनी ऑफ इट। द बेस्ट वे इज look at the anthropometric data of the client, उनका बॉडी स्ट्रक्चर या हाइट कैसा है, उसके हिसाब से आप थोड़ा सा 60, 50 to 70 mm एडजस्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा एडजस्ट मत करो। पीपल हु आर बोर्ड कैन प्लीज गो और हंग्री कैन प्लीज गो। यूज ऑफ थर्मोस्टेटिक कंट्रोल बॉडी जेट्स, रेन शावर्स, so इसकी प्लम्बिंग अलग होती है, इसकी प्लम्बिंग काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है। नेक्स्ट, देयर आर सिस्टम्स लाइक दिस ऑल्सो। You have body jets and showers on the right and left. अब showers की करंट स्टेज की सबसे मजेदार बात ये है, जब नहीं प्रीवियस स्लाइड पे जाइए, पहले वाले पे जाइए। हाँ, इसमें जो मिक्सर था, मिक्सर वाले में एक प्रॉब्लम था कि जो मिक्सर में से शावर जो है वो हमेशा सीधे पाइप से ही जाता, तो वो पूरा असेंबली हमेशा एक ही लाइन में चलता था। अभी करंट वाले पे आ जाइए। हाँ, अभी इसमें, हाँ वापस पहले वाले पे जाइए। हाँ बोल। हाँ हाँ
एक मुझे मैनुअल कंट्रोल्स है, एक में कोल्ड वाटर आ रहा है, एक में हॉट आ रहा है. आप मैन्युअली कंट्रोल कर रहे हो कि आप कितना पानी छोड़ रहे हो, और बीच का जो नॉब है वो सिर्फ फ्लो कंट्रोल कर रहा है कि आपने जो पानी रिलीज किया है उसको कौन सा डायरेक्शन देना है. और बीच वाला जो पोर्शन है वो सिर्फ डायरेक्शन देने का काम कर रहा है कि नल में से पानी आएगा या शावर में से आएगा. वो टेम्परेचर कंट्रोल का कोई काम नहीं कर रहा है. नहीं, हॉट वाटर कितना ये आप आपके हाथ से डिसाइड कर रहे हो, बिकॉज वो जो दोनों साइड में जो नल है वो आप आपके हाथ से ओपन करते हो. तो आपने अगर सिर्फ गर्म पानी छोड़ा तो बॉइलिंग हॉट वाटर दोनों तरफ से ऊपर नीचे में से आ सकता है, बिकॉज आपके ऊपर है. ये टोटली मैन्युअली कंट्रोल्ड है. सबसे मजेदार बात जो अब आ गई है वो ये है कि अब डायरेक्शन का कोई बाइंडिंग ही नहीं बचा. आपका डायोड इधर हो सकता है, अगर एक दूसरे स्क्वायर रूम फिर बाथरूम where I am standing there is a wall out there. शावर एनक्लोजर के लिए ग्लास पार्टीशन बनाया, वहां दरवाजा है, यहाँ मुझे बेंच देना बैठने का, और यहाँ पे मुझे बॉडी जेट भी लगा. मेरा डाइवर्टर किसी और दीवार पे हो सकता है, मेरे बॉडी जेट किसी और दीवार पे हो सकते हैं, मेरा नल किसी और दीवार पे हो सकता है. एवरीथिंग इज पॉसिबल. There is no such rule yet कि हर चीज लाइन में आनी चाहिए. But this is only possible when you become a little more expert in designing the bathroom. कि आपकी हर चीज अलग अलग हो सकती है. मतलब आपका कंट्रोल यहाँ पे है, पानी वो दीवार से आ रहा है, पॉसिबल. इसमें आप देखो कि कंट्रोल सेंटर वाली वॉल पे है और राइट एंड लेफ्ट की शावर्स में से पानी. This is very much possible. Now, along with the plumbing, there's a lot of electrical also that is involved while designing premium bathrooms. Because the shower heads nowadays have built-in LEDs, and then इस तरीके के bathroom design करने में most of the times जितना बार pressure is measured in bar. तो जितनी बार pressure पानी का लगता है उतना available नहीं होता simultaneously इतना सारा पानी लगेगा, क्योंकि most of the cases में हमको pressure pump लगाना पड़ता है. प्रेशर पंप लगाना पड़ता है. उसका लोकेशन कैन बी इधर इन योर ओन हाउस अबव द लॉट, और इट कैन बी अबव, इन केसेस ऑफ बंगलो इट कैन बी अबव ऑन द टेरेस, और इट कैन बी, अगर फ्लोर वाइज है तो हर फ्लोर का अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कैलकुलेशन ऑफ व्हाट इज द वर्क. प्रेशर पंप मेक्स नॉइज, बिग टाइम नॉइज होना, इसलिए उसका लोकेशन ऐसी जगह रखना कि कभी भी वो आपके प्राइवेट जोन्स में बहुत नजदीक में नहीं हो. उसकी प्लम्बिंग के पाइप की डिस्टेंस का कोई इतना ज्यादा मेजर क्राइटेरिया नहीं कि भैया 3 मीटर के अंदर ही अपने को रखना है या 5 मीटर के अंदर रखना है, ऐसा कुछ नहीं है. उसमें अच्छा खासा स्कोप मिल जाए. So all this is possible, and इसका प्लम्बिंग सीखना अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. जितने ये बॉडी जेट्स वाले होते हैं, जो मसाज वाले जो जेट्स होते हैं, सारे एंड स्टील के साथ होता है. Now why bind this? This is not a set. Again, this is not a set. जैसे फ्लश टाइम के केस में हो गया, डब्ल्यूसी बोला कि आपको हर चीज अलग खरीदनी पड़ती है. शावर के केस में भी आपको हर चीज अलग खरीदनी पड़ती है. आपने डाइवर्टर खरीदा, इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ नल फ्री. आप डाइवर्टर का पैसा अलग दोगे, नल का पैसा अलग दोगे, शावर का पैसा अलग दोगे, हैंड शावर का अलग दोगे, बॉडी जेट्स लगाने तो उसका अलग दोगे. सबसे पहले आपको डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि आप क्या क्या लगाने वाले हो. पहले डायमीटर खरीद के बाद में चीजें ऐड नहीं की जा सकती. उसके कंट्रोल्स डिपेंड करते हैं कि आपको आउटपुट डिवाइसेस कितने चाहिए. थर्मोस्टेट है जो बिगिनिंग में आया था, जिसमें मैन्युअली टेम्परेचर सेट करने के बाद में ये नल एक पहले का इमेज है. नेक्स्ट प्रॉब्लम. नाउ टू गेट दिस काइंड ऑफ effects of rain shower and controls, you see the number of circular knobs, those are there, those are all controls. Now one thing controls maximum 2 items. One knob controls maximum 2 items, and at times अगर कम है तो मिनिमम 1 आइटम तो करता ही करता कंट्रोल है, पर मैक्सिमम 2 आइटम्स कंट्रोल करता है. उसको राइट लेफ्ट करने पे पानी 2 डायरेक्शन में जा सकता है.
2 आइटम्स। सो जितने बॉडी जेट्स है उसके हिसाब से उतने नॉब्स रहते हैं, उतने कंट्रोल्स रहते हैं। तो पहले आपको जब बाथरूम आप डिजाइन करते हो, जब प्रीमियम बाथरूम्स, लग्जरी बाथरूम्स, जो आज का मेन टॉपिक है व्हेन यू से लग्जरी बाथरूम्स, यू नीड टू डिसाइड द नंबर ऑफ शावर्स, द बॉडी जेट्स। इफ यू आर टेकिंग, नॉट टेकिंग, नहीं लेना है नहीं लेना है भैया, ओके, पर डिसाइड करना जरूरी है कि लेना है या नहीं लेना है, और लेना है तो क्या क्या लेना है, वो डिसाइड करना बहुत जरूरी है। उसके बिना आप आपका डायवर्टर थर्मोस्टेट का सेट नहीं खरीद पाओगे। मतलब अगर कोई क्लाइंट बोले कि अभी ये ले लो, वो बाकी का बाद में देखेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं, ऐसा आधा लेके नहीं होगा, डिसीजन हमको एक साथ करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट अनदर सेट ऑफ थिंग्स। राइट साइड में आप देख रहे हो, इमेज ऑन द राइट एंड द इमेज ऑन द लेफ्ट आर नॉट रियल bathrooms, these are net generated images, so certain things might not be technically right in them, but what I wanted to show is that body jets, 3 body jets दिए हुए हैं, बीच में पैनल दिया हुआ है, हैंड शावर है और ऊपर रेन शावर है। रेन शावर की कंट्रोल के लिए मेन एक वाटर फ्लो का नॉब रहेगा, एक रेन शावर के कंट्रोल का नॉब रहेगा, 3 बॉडी जेट्स के 3 नॉब्स रहेंगे, हैंड शावर का अगला नॉब रहेगा। गिन के देख लो, बराबर है, बराबर है। तो अगर हमने नंबर ऑफ आइटम्स डिसाइड नहीं किए तो बीच का जो थर्मोस्टैटिक पैनल है वो हम सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे और ना ही उसकी हम प्लम्बिंग कर पाएंगे। हमने मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, शावर एरिया में पानी का इनलेट लाके छोड़ दिया कंसील प्लम्बिंग में, उसके आगे की प्लम्बिंग सब प्रोडक्ट डिसाइड होने के बाद ही हो सकती है। इस तरीके से प्लम्बिंग नजर आती है। बिगेस्ट रियल टाइम प्रॉब्लम दैट वी फेस्ड इन वन ऑफ द बाथरूम्स वाज, हमने पूरा डायग्राम बना के दे दिया, प्लम्बर ने काम कर दिया, टाइल्स लग गए, सब लग गए, बॉडी जेट्स, शावर सब लग गए, वो बंदा हैंड शावर का पाइप निकालना भूल गया। हैंड शावर का बॉक्स ही दूसरे जगह रखा हुआ था सामान का, लेके आया, अब हैंड शावर कैसे जोड़ेंगे, वापस टाइल तोड़ना पड़ा, प्लास्टर तोड़ना पड़ा, मेन डायवर्टर के साथ प्लम्बिंग वापस करना पड़ा, एंड वापस टाइल्स वापस लगाने पड़े। सेकेंड प्रॉब्लम दैट आई फेस्ड वाज, हम लोग चाहे कितने भी डायग्राम्स में सही तरीके से हाइट्स दे दें, प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन कभी डायग्राम के हिसाब से काम नहीं करता। आप हाइट दे दो उसको कि इस लेवल से पाइप निकालनी, इस लेवल से पाइप निकालनी, वो हाँ हाँ बोलता है और करता उससे 3-4 इंच ऊपर नीचे है। तो ये सब होने के बाद में ना, प्रीवियस स्लाइड पे जाइए, तो ये जैसे निशेस वगैरह है ना, वैसे बाथरूम की जो एक्सेसरीज लगती है, जैसे सोप डिश हो गया या ट्रे हो गया, वापस नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए। तो सब बाथरूम पूरा हो गया, जैसे आपने देखा था ना इसके पहले वाला, सब रेडी, प्लम्बिंग टेस्टिंग, प्रेशर टेस्टिंग करके, लाइट टेस्टिंग करके हो गया। अब लास्ट काम बचा है, ग्लास पार्टीशन वाला आके ग्लास पार्टीशन लगा के गया, अब एक्सेसरीज लगाने, टॉवल रॉड, सोप डिश वगैरह। टॉवल रॉड ऊपर के हाइट पे, सोप डिश लगाने गया, उसी लेवल पे नीचे से मेन पानी का इनलेट पाइप घूम रहा था, पंचर, पूरे बाथरूम में पानी। लाइन पंचर, पूरे बाथरूम में पानी। सो दिस आर द थिंग्स दैट you might feel that working drawings are too tedious, but believe me, working drawings are worth it. And secondly, चाहे कितना ही वर्किंग ड्राइंग क्यों ना करो, साइट पे जब रॉ काम होता है, उसका फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन और उसके ऊपर हाइट्स डॉक्यूमेंट के तौर पे रखो, अपने क्लाइंट को बाद में देने के लिए, कि आपका पानी का लाइन जो है 2 फीट के लेवल पे घुमा हुआ है, आपका लाइट का पाइप जो है, इलेक्ट्रिकल कॉन्ड्यूट जो है 4.5 फीट पे घुमा हुआ है। कल को जब उनके बंगलों में 10 साल बाद रिपेयर आएगा, वो आपको कॉल करेगा, अरे सिंह साहब, वो ना बाथरूम का प्लम्बिंग खराब हो गया है, चेंज करवाना है, तो वो किधर से गया है पाइप, आपको याद रहने वाला है। So these are the practical things we have learned while working on site, real time work, real time experiences and real time problems that we have solved. And for that reason I'm trying to tell you that precision in work के साथ में site condition का documentation भी आजकल उतना ही important हो गया। कि आप लाख बोलो precision of work, वो site पे करने वाले, जैसे हम सब में भी होता है ना कि आज बिठाया है, आप लाख बातें करो, बकबक करो, जिसको नहीं सुनना है वो नहीं सुनेगा, वैसा ही वो प्लम्बर भी होता है।
उसको कितना भी बता दो, वो अपनी मर्जी से ही करेगा, वो अपनी अकल के घोड़े दौड़ाएगा। हाँ हाँ साहब, मेरे को पता है, मैंने ऐसे बहुत बाथरूम बनाए, मैं कर दूंगा, आप टेंशन मत करो। वो कुछ तो गड़बड़ करके छोड़ेगा। फॉर हिम इट्स अ मैटर ऑफ एक बाथरूम के वॉट एवर ही मस्ट बी टेकिंग कंसील प्लम्बिंग की, he'll take 8-10,000 each fitting, he'll take 1,500 rupees. For him it is a matter, क्या बोले, अच्छा डाइवर्टर गलत बिठा दिया साहब, 1500 रुपए काट लो। अरे he doesn't know bloody, this is not only about 1,500 rupees, it is about 25,000 rupees that has gone wrong. And client is eating your head on top of that and burning your blood, which is priceless. So these are the things, and that is why this is a very, very interesting topic, and actually this is a very, very large topic. What I mentioned, the diverter is on one side and the body jets are on the other side. Plumbing for that. So that is very much possible. मैंने प्लम्बिंग की फोटो आपको दिखा दी। Do you think you are ready to make these kind of bathrooms? थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल सुधरा है आज? एक ही बंदे ने यस बोला जाना, एक ही का सुधरा है कॉन्फिडेंस लेवल। पर मुझे बताओ, थियोरी में पढ़ के याद रहता है या ऐसे कोई बोल के समझाता है या फोटोग्राफ देखते हैं तो ज्यादा याद रहता है? तो आपको लगता है कि जो थर्ड ईयर में से मिस आउट हो गया था, जो फोर्थ ईयर में उनसे पूछ रही हूँ, वो आज के बाद थोड़ा सा ज्यादा याद रहेगा? हाँ। और थर्ड ईयर वाले जो पढ़ रहे हैं, कितने थर्ड ईयर वाले? ओ वाओ। सो थर्ड ईयर वाले अब जब थ्योरी करेंगे, मेरे ख्याल से आधे आपके तो थ्योरी के क्वेश्चन के आंसर मैंने दे दिया, पढ़ाई की जरूरत नहीं है। लिख अपनी लैंग्वेज में बना के लिख देना, थोड़ा इंग्लिश ऊपर नीचे हो जाएगी और कुछ भी। आई वुड लाइक टू आस्क द थर्ड ईयर्स, आपने आज क्या सीखा? थर्ड ईयर में से प्लीज मुझे 2-3 लोगों से सुनना है कि आपने आज क्या सीखा। मैम एक क्वेश्चन है मैम, वेंटिलेशन की तो बात की ही नहीं मैम की। आज हम प्लम्बिंग की बात कर रहे हैं। बट मैम जैसे कि आज का टाइम, मैंने मैम को अभी बोला कि अभी और आगे जाने वाले, अभी हमारा खत्म नहीं हुआ। मैम ने बोला आधा घंटा और है, और वेंटिलेशन ये डिजाइन का एक पार्ट है। आज वी आर स्पेसिफिकली टचिंग द प्लम्बिंग पार्ट। आप लाइटिंग भी बोल सकते थे, आप डोर ओपनिंग भी बोल सकते थे, आप लिंटल भी बोल सकते थे, आप फ्लोरिंग बोल सकते थे, आप स्लोप्स बोल सकते थे, आप बहुत कुछ पूछ सकते थे मुझसे, पर आज का टॉपिक प्लम्बिंग है। I would like to have a feedback from third year. Any doubts या जो चीज पहली बार देखी आज ठीक समझ में आई, कुछ भी बात कर सकते हो कि ये मैंने आज पहली बार देखा, मुझे समझ में आया, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, या ये मुझे पहली बार पता चला, या ये मैंने आज, ये मुझे याद रहेगा। whatever you want to tell me. The hidden part of the plumbing. हमने स्टार्टिंग में देखा था विजिबल पार्ट एंड हिडन पार्ट, हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, याद है शुरुआत में? सो वी आर टचिंग द हिडन पार्ट टू सम एक्सटेंट, जितना हो सकता है। ड्रेन्स। नाउ व्हाई आर ट्रैप्स नेसेसरी? ट्रैप की क्या जरूरत होती है? और इंसेक्ट के लिए मैंने जाली लगा दी पाइप में, चलो नहीं आएगा। आगे? हाँ। और ट्रैप वर्ड में ही आ गया, ठीक है। सबसे पहले इट ट्रैप्स द वाटर एंड टेक्स इट टू द डिजायर्ड प्लेस। वो लेके जाता है पानी को, गंदगी को, एक जगह से दूसरी जगह। और उसके जॉइनरीज होते हैं, उसके टेक्निकल पार्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से उसका मेंटेनेंस इजी होता है, जिसकी वजह से उसमें फिल्ट्रेशन अच्छी होती है, जिसकी वजह से उसका इंस्टॉलेशन इजी होता है, जिसकी वजह से इंस्टॉलेशन के बाद में कभी फ्यूचर में रिपेयर आए तो उसके पार्ट्स ओपन करना इजी हो। देखे होंगे ये ना, जो बाथरूम जनरली लगता है फ्लोर ट्रैप 2-3 टाइप के होते हैं, जो टेरेस स्टॉर्म वाटर ड्रेन के भी होते हैं, बाथरूम में लगते हैं, उसको नानी ट्रैप बोला जाता है। नानी ट्रैप के जो ऊपर जो कवर होता है, इट कैन बी सर्कुलर और स्क्वायर,
इन SS और इन सम अदर मटेरियल, PVC भी होता है, SS भी होता है और भी होते हैं, और दूसरा होता है जिसमें टाइल भी लग सकता है। तो जो राइट साइड में है उसमें फ्लोर का टाइल का स्लॉट है, सो दैट वो ट्रैप का सिर्फ बॉर्डर दिखता है चारों साइड से, बीच में टाइल का पीस लगता है, ये पता होगा। ये प्रोडक्ट कैटलॉग में देखा है, रियल में देखा है? कितनों ने रियल में देखा है? कहाँ देखा है? चलो, होटल्स में। अभी प्रीवियस पे जाइए। भाई इसमें तो पता चलता है कि पाइप ऐसे जुड़ गया है ना, ड्रेन ट्रे में पाइप कहाँ जुड़ता होगा, वो तो इतना लंबा है। नेक्स्ट पे जाइए, ये राइट साइड में उसका पार्ट दिया हुआ है इस तरीके से। नाउ दिस इज जस्ट अ ट्रे फैसिलिटेटेड विद अ ट्रैप, ओके। नाउ दिस पोजिशन ऑफ द ट्रैप can be in the corner, it can be in the center. The position of the trap is changeable. The tray has multiple slots. You can puncture it at the desired location. आपका जहां से आपका पानी का आउटलेट निकलने वाला है उसके हिसाब से आप उसमें वो कर सकते हो। मतलब ये नहीं है कि आपको सेंटर वाला खरीद के जमीन में सेंटर में छेद करके सेंटर से पाइप निकालना, आपकी प्लम्बिंग के हिसाब से आपको प्रोडक्ट चूज करना। Any questions on this? ये जो सब ये रिमूवेबल होता है, ये यहाँ तक रिमूवेबल होता है, इसमें टाइल का पीस लगता है। यही पूछना था ना क्लीनिंग के लिए, तो ये रिमूवेबल होता है। इसके पहले वाले स्लाइड पे जाइए, इसके केस में ये भी रिमूवेबल होता है। मतलब आप टाइल ये ब्रैकेट से निकाल सकते हो, ब्रैकेट में से, मतलब कोई रेगुलर इंसान जिसको कुछ प्लम्बिंग नहीं आती वो भी निकाल सकता है, और इसको उठा सकते हैं, इसको उठा सकते हैं, और इसको क्लीन किया जा सकता है। सिमिलरली नेक्स्ट पे जाइए, ये जो है इसमें देयर आर नॉचेस एंड हुक्स वेयर द टाइल और द फ्लोरिंग और द स्टोन कैन बी फिटेड, एंड उसको सिर्फ एक पट्टी की मदद से आप निकाल सकते हो। ये ट्रे वॉश की जा सकती है, रेगुलरली क्लीन की जा सकती है और वापस बिठाई जा सकती है। बाई एनीबडी, एनी लेमैन कैन डू इट, यू डोंट नीड अ टेक्निकल पर्सन टू क्लीन इट। टेक्निकल डायग्राम्स हाउ द train trays actually pull in the water and take it ahead. Brief of the plumbing piping, because आज टाइम नहीं है इतना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कुछ घंटे में तो खत्म होना पॉसिबल ही नहीं है। So you're aware of the types of plumbing that is available. ये बहुत बेसिक, जब प्लम्बिंग शुरू करते हैं पढ़ना तब सबसे पहले यही सीखते हैं, कितने टाइप के पाइप्स होते हैं, क्या होता है। You know the terminologies, ये नाम पता है सबको? भूख लग गई अब सब। Do you know the names जो भी हैं? टेक्स्ट नहीं मालूम था, नहीं मालूम था, ओके। That is the new age plumbing. Every plumbing will have a hot and cold. Color coding is there. Yeah, color coding is there for hot and cold. It's a cross polymer knit piping जिसको lifetime warranty होता है. It's a technology in itself. I have pictures for that later on. तो इस तरीके की आपकी प्लम्बिंग पाइपिंग होती है। कॉपर पाइपिंग हमारे केस में कहाँ पे यूज करना पड़ता है? इन केस ऑफ बाथरूम्स। Heaters, but we don't make heaters on site. We buy them. Heater बनने के लिए यूज करते हैं, हम साइट पे कहाँ यूज करेंगे? एक तो एयर कंडीशनिंग के समय यूज होता है साइट पे, वो पता है, जब कॉपर पाइपिंग लगती है फॉर ट्रांसफर ऑफ गैस। और प्लम्बिंग में कहाँ लगती है? इन केस ऑफ स्टीम, आपका अगर स्टीम मशीन, आपके स्टीम सोना का फैसिलिटी है अगर शावर में, तो स्टीम जनरेटर की मशीन होती है जिसको पावर सप्लाई भी 5 square mm या 2.5 square mm ऑफ वायर, डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी ऑफ द दिस थिंग, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी अलग टाइप का देना पड़ता है। इट्स अ डिफरेंट आर्मर्ड केबल दैट वी नीड टू गिव फॉर दैट। एंड उसके केस में जो पाइपिंग होती है वो कॉपर पाइपिंग होती है। In that case, 12 mm copper piping is done on site from the location of your steam machine to the steam outlet.
उतनी कॉपर पाइपिंग साइट पे की जाती है, उसकी जॉइनरी, उसका सीलिंग, सब उसकी इक्विपमेंट लाके साइट पे किया जाता है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू सी. स्टीम मशीन का भी एक होता है, यू नीड टू गिव वाटर इनलेट, पानी देना पड़ता है स्टीम मशीन को, उसमें से आउटलेट स्टीम जाता है, एंड देन देयर इज अ ड्रेन दैट यू नीड टू प्रोवाइड, बिकॉज जब हम स्टीम लेना बंद कर देते हैं मशीन के अंदर का पानी खाली करने के लिए एक ड्रेन कनेक्शन देना पड़ता है. सो there is an entire different plumbing altogether. If you want, we will have one more session. कैसे पाइपिंग होती है, कैसे ड्रेन्स वर्क होते हैं, उसका डायग्राम कैसे होता है, करते कैसे हैं, we'll do it later. नेक्स्ट, तो पाइप कैसे चूज करते हैं, स्पेस, फंक्शनैलिटी, पानी का प्रेशर, ड्यूरेबिलिटी कितनी चाहिए, और कॉस्टिंग. कॉस्टिंग में अगर आप पहले से मेटल पाइप्स में जाएंगे तो वो ज़्यादा कॉस्टली हो गए, जो पहले यूज़ हुआ करते थे. GI एंड ब्रास तो अब नहीं यूज़ होता है ज़्यादा, जो CPVC एंड UPVC ज़्यादा यूज़ होते हैं. एंड देन देर आर द न्यू वन आर द PEX. नेक्स्ट वन, the PEX plumbing introduction. You just asked me about it. What is PEX? These are cross-linked polymer pipes and they are bendable. मतलब बाकी जो UPVC CPVC पाइप होते हैं वो पाइप सीधा आता है, फिर उसमें आपको वो बेंड खरीदना पड़ता है. लाइक T रहेगा, एल्बो रहेगा, L रहेगा, या कर्व रहेगा, या बेंड रहेगा, वो खरीदना पड़ता है. एंड उसकी जॉइनरी होती जाती है. इसमें यू गेट जैसे इलेक्ट्रिकल वायर कैसे पूरा बड़े बंडल्स में आता है 10-10 मीटर्स, या जिसमें आता है 50-50 मीटर्स में, वैसे पाइप एक लेंथ में आते हैं. उसकी जॉइनरी जो होती है, जॉइनरी की लोकेशन पे उसको मेटल से ही जॉइनरी की जाती है उसकी, बिकॉज क्रॉसलिंक पॉलीमर है तो उसकी जॉइनरी द बेस्ट हैपेंस इज विद इधर ब्रास रहता है, कॉपर रहता है, इस तरीके की मटेरियल्स यूज होते हैं. और ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज ऑटोमेशन किसके किसके घर में है, या कॉलेज में ऑटोमेशन कहाँ पे है, कॉलेज में ऑटोमेशन पैनल या ऑटोमेशन या कोई पैनल कहाँ पे, अपना नेटवर्क रैक कहाँ पे है कॉलेज में, नेटवर्किंग का रैक कहाँ पे, जाके देखना उसमें जिस तरीके से वायर्स आते हैं पूरे, उस तरीके से पूरा पाइपिंग प्लम्बिंग पूरा मार्क करके किया जाता है सिस्टमैटिकली. यहाँ से पाइप आएगा, ये पाइप नल को जाएगा. अब इसमें मेजर डिफरेंस क्या होता है, जो हमारा CPVC UPVC पाइपिंग या प्लम्बिंग होती है ना, किसी भी बाथरूम के अंदर एक मेन इनलेट आता है और उस मेन इनलेट से ब्रांच निकलना शुरू हो जाती है जो हर तरफ घूमती है. मतलब वो एक लेफ्ट जाएगी, एक राइट जाएगी, उसमें से सब ब्रांचेस निकलेंगे. इट्स लाइक अ ट्री, वन ट्रंक, वन बिग ब्रांच एंड मल्टीपल ब्रांचेस. वेयरएज दिस इज डन विद कंप्लीट इंडिपेंडेंट ब्रांचेस. मतलब इनलेट आएगा, वो कॉपर या जो मेन ये हब है वहां पे इनलेट आएगा और उस इनलेट में से हर आउटलेट अलग निकलेगा. तो इसके केस में प्रेशर मेंटेनेंस बहुत अच्छा होता है, हर आउटलेट अलग निकलेगा. उसके केस में प्रेशर मेंटेनेंस बहुत अच्छा होता है, बिकॉज आपके बाथरूम में अगर 6 नल हैं तो 6 कोल्ड वाटर लाइन निकलेंगे. उसमें से 6 नल में से 3 नल मिक्सर्स हैं जिसमें हॉट वाटर चाहिए, तो 3 हॉट वाटर लाइन निकलेंगे. सब कुछ यहाँ मेन इसमें आएगा. जो 2 कॉपर के पाइप दिख रहे हैं, एक हॉट का रहेगा, एक कोल्ड का रहेगा, उसमें से ब्रांचिंग होती है. तो अगर कुछ बिगड़ा तो सिर्फ यहीं पे चेक करना है, उसको छोड़ के कहीं पे भी चेक नहीं करना है. सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द PEX पाइपिंग दैट वी बिगिन विद. एंड मैम, इंदौर में गैब्रेट का डेमो सेंटर या कुछ शोरूम है, गैब्रेट का है? अगर होगा तो या तो कंपनी का प्रोडक्ट का यहाँ पे ये करवाइए, लेके आते हैं पूरा सेटअप दिखाने के लिए, या कहीं पे डेमो या बड़ा सेंटर होगा तो यू कैन टेक द किड्स टू दैट. बहुत इशू हो जाएगा, तो ये समझ में आ जाएगा अच्छे से, बिकॉज जब रियल प्रोडक्ट देखेंगे तो उसके बाद में. मोस्टली दिस काइंड ऑफ पाइपिंग इज यूज्ड इन जहाँ पे स्पेस कंस्ट्रेंट पर, ये कॉस्टिंग की वाइज 2.5 गुना ज्यादा कॉस्टली है CPVC UPVC के कंपैरिजन में. ये कॉस्टली चीज है. दूसरी बात, ये वहां यूज ज्यादा होता है जहाँ पे यू हैव स्पेस कंस्ट्रेंट्स. इसके केस में मोस्टली प्लम्बिंग की जो पानी के इनलेट्स भी फ्लोर में से निकलते हैं. मतलब इसमें कोई रूल नहीं रहता कि दीवार में से ही चल रहा है. जनरली रूल कैसा रहता है प्लम्बिंग में कि जो पानी के इनलेट्स हैं वो दीवार से घूमते हैं और जो ड्रेनेज और जो सीवेज एंड सलेज लाइन्स हैं वो फ्लोर में से चलते हैं. इसके केस में कोई रूल नहीं है, आप कहीं से भी लेके जाओ.
दीवार में चाहिए दीवार में से लेके जाओ, फ्लोर में से चाहिए फ्लोर में से लेके जाओ, नो क्राइटेरिया. We have reached a stage where I want to tell this to you that the more knowledge you have, you will become more expert in the line. Because पूरा घर अगर 2-2,500 रुपए स्क्वायर फीट में बन रहा है, बाथरूम 6 से 7 हजार रुपए स्क्वायर फीट के नीचे नहीं बनता है. Second thing, your fees is dependent on the percentage of the cost of the project. The more expensive bathrooms you make, the more money you will make. For making more expensive bathrooms, you need to have knowledge of how to make them. And for making them, the client has to trust you. And for the client to trust you, you should, तुम्हारा बात करने का तरीका वैसा होना चाहिए कि दिखना चाहिए कि आपको सब आता है. और वो कब होगा? जब सच में आएगा. Target to make expensive bathrooms within 5 years after passing out from college. Glad to see most of you want to make expensive bathrooms. So you will have happy clients, you will have complete utilization of this thing. पर ये जो छोटी छोटी गलतियां जो मैंने मेरी मतलब बताई प्रैक्टिकली जो होती है, उसको अवॉइड करने के तरीके भी बता दिए मैंने कि किस किस लेवल पे डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी है. दूसरा, यू शुड हैव गुड प्लम्बर्स जो वो प्रोडक्ट यूज कर चुके हैं. मोस्ट ऑफ द केसेस इवन फर्नीचर हार्डवेयर, डोर हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल न्यू कंपोनेंट्स, प्लम्बिंग. इफ द आर्किटेक्ट हैज अ गुड नॉलेज, आर्किटेक्ट गिव्स द डेमो टू द कॉन्ट्रैक्टर्स ऑन साइट. वो अपने सामने खुलवाता है प्रोडक्ट को और अपने सामने जॉइनरी बताता है, भैया इसको खोलो, इसके बाद इसका पहला पाइप यहाँ से कनेक्ट करना है, दूसरा यहाँ से करना है. पहले कच्चा काम करके दिखाओ, मैं चेक करके जाऊंगी, फिर फाइनल काम करो. दिस इज वेयर वी आर. मेक इट हैपन, मेक इट हैपन. नेक्स्ट Thank you so much. Anybody have any open questions? जो सारे टॉपिक्स में पूछ सकते हो. Using wash basin, taps, shower, drains, piping, whatever. Ma'am, what will be the procedure for working in various sizes of bathrooms in a large-scale government project? Like, what will be the procedure from the starting to the end, if you can evaluate? The procedure will be the same. After the construction, when the first round of plaster is done. In case of government projects, the things are more sorted. Because government projects generally tendering process के बाद ही allocate होते हैं, allot होते हैं. In that case, architect is the one who is prepared the entire set of scope of work and the brief of the project. तो category of product पहले तय हो चुका होता है. They will be saying that Jaguar, Kohler or similar make of taps, सब पहले से पता होता है, डिजाइन फाइनल हो चुकी होती है. सो इन केस ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स इट्स मोर इजियर बिकॉज एवरीथिंग इज 99% ऑफ द चीजें सारी पहले से तय हो चुकी होती है. तो ड्राइंग्स बनाना आसान है, बाकी की चीजें आसान है. गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में एक होता है, दे नेवर गिव अ डिजाइन प्रोजेक्ट, दे ऑलवेज गिव अ डिजाइन एंड बिल्ड. सो यू विल हैव टू हैव योर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम या कोई तो एक साइट पे लोग लगाने पड़ते हैं जो डे टू डे काम देखते हैं उसके लिए. तो सीक्वेंस ऑफ वर्क तो आप ही को तय करना है कि किसकी बात क्या होने वाला है. लाइक वंस द स्लैब्स आर डन, साइमल्टेनियसली द ब्रिक वर्क इज डन. इफ यू वांट टू do the internal plumbing, you do the internal plumbing, but I would say one thing, never fix the final fixtures like taps, pots and basins till the 90% project is done, because उसमें चोरियां होती है, उसमें मिसयूज होता है, उसमें स्क्रैचेस पड़ते हैं और चीजें टूटती हैं. वही रीजन है और कोई नहीं है. लगा सकते हो लगाने को, और वो चीजें बिकॉज हमारे यहाँ का जो क्राउड है वो इतना अच्छा टॉयलेट ट्रेन नहीं है कि यहाँ नहीं थूकना है, यहाँ नहीं करना है. तो आप कितना कंट्रोल करोगे उन लोगों को, नहीं कर पाते हैं. तो उस वजह से जब तक 90% ऑफ द प्रोजेक्ट होने के बाद ही सीपी सैनिटरी फिटिंग्स लगवाइए, बाकी का साइमल्टेनियसली काम करवाइए. टाइल्स वाइल्स सब लग सकती है, टाइल लग सकती है, इंटरनल प्लम्बिंग हो सकती है, उसके एंगल को आप तक आके छोड़ दिया. उसके आगे जो मेन फिटिंग लगने वाली है, टू प्रोटेक्ट द फिटिंग फ्रॉम डैमेजेस, टू प्रोटेक्ट द फिटिंग फ्रॉम मिसयूज,
एंड जो भी तरीके का मिसयूज है, लाइक स्टीलिंग एज वेल एज स्पॉइलिंग, उसके लिए वही बेटर है. थैंक यू मैम. सॉफ्टनर्स होते हैं उसके लिए. हाँ, सॉफ्टनर जैसे प्रेशर पंप होता है और जैसे स्टीम का मशीन होता है, वैसे सॉफ्टनर मेन इनलेट से ही कनेक्टेड होता है, जिसमें एक घर के अंदर जैसे वाटर प्योरीफायर होता है उस तरीके का फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है. पहले वाटर टेस्टिंग होती है उनके जो सॉफ्टनर्स में डील करते हैं, उन लोगों के पास इंजीनियर्स होते हैं जो वाटर को पूरा टेस्ट करते हैं, एंड देन दे डिसाइड कि कितना सेडिमेंटेशन है, किस तरीके के फिल्टर्स लगेंगे, देन दे गिव यू अ प्रपोजल ऑफ सॉफ्टनर्स, and then it is then, but it's a maintenance thing. No, it is not a one size fit all. Softener is not one size fit all. It's a customized solution as per the water condition. मैम जैसे आजकल प्लम्बिंग सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम कोलैब हो रहे हैं, आपने बोला था कि लाइट्स आ रही है, तो उस टाइम पर हम जो सर्विसेज देते हैं, पाइपिंग्स देते हैं, वो कैसे अफेक्ट होती है उस चीज के लिए? अफेक्ट होती है मतलब मैम इलेक्ट्रिकल लाइन और प्लम्बिंग लाइन दोनों साथ में वहां पे जाएगी. हाँ, करेक्ट. तो उसमें वहां पे क्या चेंज आएगा? जैसे इलेक्ट्रिशियन चेंज सिर्फ ये आएगा कि जब दो से 3 से 4 एजेंसीज एक ही स्पॉट में जब काम करते हैं, यू विल हैव टू गिव प्रिसाइज ड्राइंग्स कि किसका जोन क्या है. लाइक अगर फॉल्स सीलिंग के अंदर है तो आप लेवल्स दे सकते हो. हम लोग देते हैं जनरली कि अगर ये लेवल से पाइप चलेगा, ये वाला इसका पाइप इस लेवल से चलेगा, तो दोनों के इंटरसेक्शंस अवॉइड होते हैं. दूसरा, अगर फॉल्स सीलिंग्स नहीं है और वॉल्स हैं तो भी आप जोन दे सकते हो कि अगर पूरी 10 फीट की वॉल है जिसमें से 4 लोगों ने अलग अलग लोगों ने काम करना है, तो देन यू कैन गिव बेस कि ये बे इसके लिए, ये बे इसके लिए. यू हैव टू डिसाइड. कभी कभी जब एक ही चीज में दोनों चीजों की फिटिंग आती है, जैसे रेन शावर्स में इलेक्ट्रिकल और वो दोनों आते हैं, सो इट इज द प्रोडक्ट इज मेड कंपैटिबल टू हैव बोथ ऑफ देम. तो उस केस में सिर्फ ये है कि आपके जो कॉन्ड्यूट्स और जो पाइप्स हैं उसमें किसी तरीके की लीकेजेस या unnecessary joinery नहीं होनी चाहिए. Like the electrical wire that is coming from the switchboard to the shower should not have any joints. वो complete होनी चाहिए without loop, मतलब उसमें joints नहीं होनी चाहिए. Anybody else? Interesting questions पूछ रहे हैं मैम, है ना? I think that's all. मैम आपको कोई इंसाइट देनी, मुझे कुछ और बताऊं इन लोगों को, तो आप बता दीजिए. हाँ हाँ. Luxury and economy doesn't come in one sentence. वो एक अपने आप में टॉपिक है जो ले सकते हैं, और हम कहाँ पे like conservation and sustainability can be a topic in itself, because that helps a lot into certification, IGBC certifications. तो उस पर ले सकते हैं मैम. To you मैम. Thank you everyone.